রিফ্রেশ মারবি, যে আচ্ছা ঠিক প্লেলিস্টটা আছে, দিয়েছিলাম ওই প্লেলিস্টটা রিফ্রেশ মারবি, ওখানে আজকে রাত্রে আপডেট করবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। ঠিক আছে। अच्छा सर, गुड इवनिंग अगेन। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है कि नहीं, एक बार कंफर्म करो ना मुझे। হ্যাঁ স্যার রয়েছে। ওকে। আছে আছে আছে। কি করবো এরকম 2-4 টাকার জন্য পাগল করে না। শেখো, মার্কেট শেখো। 10 কোটি টাকা বাঁচিয়ে জীবনে কিছু পাওয়া যায় না। হ্যাঁ। মানে এইসব ছোট বুদ্ধি লাগিয়ে কিছু হবে না। কোথায় 10 টাকা কম, হ্যাঁ, কোথায় ফ্রি, এইসবের চক্করে না পড়ে মার্কেট বুঝো, মার্কেট থেকে কামাতে শেখো। তো কোথায় 10 টাকা ব্রোকারেজ পাবে কম, সেখানে মাথা খারাপ করে লাভ নেই। এটা দেখো কোথায় ভালো রিসার্চ রিপোর্ট দিচ্ছে, কোথায় ভালো অ্যানালিসিস দিচ্ছে। আমি 10,000 টাকা কামাবো, কাউকে যদি 1,000 টাকা দিতে হয় দেবো, কে আমাকে 10,000 টাকা কামাবার সুবিধে করে দেয়। কিন্তু রিসার্চ রিপোর্টটা পড়ে বোঝার মতো ক্ষমতা দরকার, সেইটা বানাও, যেটার জন্য আসছো। এই চপ, হ্যালো, বল, শুনছি শুনছি। এই চব্বতেই আমি মতিলালটাতে গেলাম। জানি তোরা কি করবি না করবি, আমি কি জানি না সেটা। আচ্ছা, নন্দনের কি হলো আজকে? নন্দন এই দেবও জয়েন করে নিয়েছে। আগের দিন দেবর বদলে অন্য কাকে লিঙ্ক পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, অন্য একটা কোনো দেব। হ্যাঁ, আগের দিনের ক্লাসে দেবকে লিঙ্ক না পাঠিয়ে অন্য কোনো দেবকে পাঠিয়ে দিয়েছি, সে ও দিব্যি ক্লাস করে নিয়েছে। দিয়ে পরের দিন আমাকে ওই ছেলেটা ফোন করছে, স্যার আপনার সাথে একটু দেখা করতে আসবো। আরে, ক্লাসের পরে আমার অরিজিনাল যে দেব ক্লাস করে, সে বলছে স্যার আজকে ক্লাস হয়নি। আমি যখন ওকে অ্যাকসেপ্ট করেছি, তখন লেখা উঠেছে দেবো বলে, আমি নিয়ে নিয়েছি। আমি কি করে জানবো? আর আমি যখন জিজ্ঞেস করছি, ও আর কোনো রেসপন্স করেনি। ঠিক আছে। এদিকে পরে যখন ক্লাস শেষ হয়েছে কমোডিটি, তখন দেবো বলছে স্যার আজকে কমোডিটি ক্লাস হয়নি। ও প্রফিট করেছে কমোডিটিতে, আমাকে শেয়ার করেছে আর দিয়ে বলছে যে আজকে কি কমোডিটি ক্লাস হয়নি। আমি বলছি ক্লাস তো হলো, তাহলে কোন দেবো করলো? তারপর জানলাম এইরকম কেস। এই এর দিনকে টিচার্স ডে দিনকেও মারাত্মক হয়েছিল, দেবো জয়েন করেছে, আমি কোনোদিন দেবকে সামনাসামনি দেখিনি। ও তো পার্ক স্ট্রিটে, না এতে, লালবাজারে থাকে। হুম। এবারে টিচার্স ডে দিন ও যে জয়েন করেছে, আমি ভাবছি এটা কে। আমি ভেবেছি প্রসেনজিৎদার কলিগ, ও উত্তরাখণ্ড গেছে না চোর ধরতে। আমি ভেবেছি ও ভিডিও করেছিল, ও থানায় ছিল। আমি ভাবছি এটা অন্য কেউ, আমি চিনতে পারিনি, কেটে দিয়েছি তোর মুখের উপরে। তারপর জানতে পারলাম ও আচ্ছা দাদা এটাই। হ্যাঁ, এরকম অনেককে না কোনদিন চোখেই দেখিনি। এরকম অনেক স্টুডেন্ট আছে, সিএসসি তে তো অনেক আছে। কোনদিন সামনে চলে এলে হয়তো বুঝতেই পারবো না, ততক্ষণ না মানে বলবে কি আমি কে। গলার আওয়াজ শুনলে বুঝে যেতাম। দিয়ে ওখানে ক্লাস হয়নি। আসলে আমাকে সবাই দেখছে, আমি তো আর সবাইকে দেখছি ना। कोई वीडियो भी बंद करके रखता है। हाँ, वही करना चाहिए, वीडियो ऑन करके क्या फायदा से। अच्छा, चलो। अच्छा, कमोडिटी मार्केट में ना मैं लास्ट वीक, थोड़ा अपडेट मेरा नहीं था। थोड़ा थोड़ा अपडेट है, ज्यादा अपडेट नहीं है। मैंने जैसे हर बार आपको आके एकदम कॉन्फिडेंस नहीं चिल्ला के बोलता हूँ ये करो वो करो, आज शायद उतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए नहीं बोल पाऊंगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पूरा लास्ट वीक कमोडिटी का मूवमेंट एकदम प्रॉपरली चेक नहीं किया, मैंने कर नहीं पाया। फिर भी करंट सिचुएशंस को देखते हुए और प्रीवियस क्लास का जो मेरा प्रेडिक्शन था, जिस तरह से एनालिसिस हुआ था, क्या उस तरह का कुछ हुआ है कि नहीं, थोड़ा देखते हैं। चलो। उसके बाद मैं लास्ट दिन आप लोगों को लेड और निकल के बारे में बात कर रहा था, उसको कंप्लीट करवाऊंगा और फिर एक न्यू कमोडिटी की तरफ आगे आगे बढ़ूंगा। कमोडिटी का एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कमोडिटी ना मैंने अपने आप में ही एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर है, ये कमोडिटी का सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बस टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज आपको होना चाहिए। और हर एक कमोडिटी अपने आप में एक एसेट है, और हर एसेट के बारे में छानबीन करना, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिंदगी मैंने एक एसेट के बारे में जाना और उस एसेट का यूज, उसका इम्प्लीकेशंस, उसका एप्लीकेशंस कहाँ क्या होता है, उसके बारे में खोजबीन लगाओ। ठीक है, सिंपल, कोई भी रास्ते में मिल जाए, अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, और
तुम्हें अगर खबर मिलता है कि भाई अच्छा ये मानो कोई नॉर्मल नॉर्मल बंदा, भाई अच्छा ये हम लोग तो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इसमें ये होने वाला है, सपोज आपको कोई खबर मिला कि बुलेट ट्रेन बनेगा कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है, कोलकाता टू दिल्ली, हाँ कोलकाता टू बनारस एंड बनारस टू दिल्ली, ऐसा होगा बुलेट ट्रेन, मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही है ये, दिल्ली मुंबई मुंबई गुजरात वाला जैसे ही कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये वाला है, वो बस एक बार सक्सेसफुली रन हो जाए, ठीक है, वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट हावड़ा से होगा, हावड़ा टू बनारस एंड देन बनारस टू दिल्ली, मैंने वो कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा करने से एक दिन में दिल्ली जाके वापस आ सकते हैं सर, पूरा सुबह जाओगे शाम को आ जाओगे। सर इससे अच्छा तो जैसे मेरे से इससे अच्छा तो एयरपोर्ट ही ज्यादा करके बना दे और ले फ्लाइट कॉस्ट अरे एयरपोर्ट का कॉस्ट कितना पड़ता है, एयरपोर्ट का टिकट का कॉस्ट कितना पड़ता है, वही 5,000 6,000 बुलेट ट्रेन इसके आधा हो जाएगा सर, सर उससे स्लीपर 50% कॉस्ट, हाँ जैसे एसी में स्लीपर में नॉर्मल ट्रेन इतना स्पीड में कहाँ जाता है, बुलेट ट्रेन 3,000 रुपया होगा, वैसे तो नॉर्मल स्लीपर में एसी में ही 3,000 रुपया लग जाता है। तो तुम एसी में क्यों जाएगा, तो इससे फिर क्या ठीक है, एसी के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, टाइम इज द फैक्ट, अगर कोलकाता से दिल्ली एक दिन में जाके तुम वापस आ सकते हो, ये तुम सोचो कि जरा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना इंप्रूव हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज का लेना देना कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे बड़ा बात कितना फास्ट हो जाएगा हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, पहले तो यहाँ से दिल्ली जाने में 3 दिन लगता था, 3 दिन ना ठीक है, उसके बाद राजधानी आने के बाद 1 दिन का 22 घंटा 23 घंटा, ठीक है, उसके बाद 17 घंटा, करेंटली राजधानी सबसे लोएस्ट लेता है 17 आवर्स, ठीक है, तो अब अभी बोला जा रहा है कि बुलेट ट्रेन आ जाएगा, जैसे गुजरात से अहमदाबाद से मुंबई, उसका करंट टाइम फ्रेम है नॉर्मल ट्रेन में 15 से 18 घंटा, वो टाइम फ्रेम करेंटली बुलेट ट्रेन आ जाने के बाद 5 to 6 आवर्स, अरे 5-6 घंटे में तुम अहमदाबाद टू मुंबई आ जाएगा, एक स्टेट कैपिटल टू अनदर बिग स्टेट का अनदर कैपिटल, बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है, और इंडिया जैसा आबादी को कनेक्ट करने के लिए बुलेट ट्रेन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट सही नहीं है, हवाई जहाज चाहिए हमें, हवाई अड्डा चाहिए हमें, बट वी आर नॉट अमेरिका, हम जैसे जापान जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर बुलेट ट्रेन इंपॉर्टेंट है, जहाज का कैपेसिटी भी तो कम होता है, तुम एट ए टाइम में कितना लोगों को जहाज में मैंने फ्लाइट में कवर कर सकते हो, बुलेट ट्रेन में तुम एट ए टाइम में 10-20-15 हजार लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर हवाई जहाज तुमको एक एट ए टाइम में कितना 200 पैसेंजर की ज्यादा तो होता नहीं है फ्लाइट, और बड़ा फ्लाइट कोई नॉर्मली हमारे रूट में चलाएगा नहीं, लॉस हो जाएगा उसका, ठीक है, तो देयर आर सर्टेन मैंने प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस है, अमेरिका जैसे कंट्री में क्या है ना, वहां पर बुलेट ट्रेन कम चलता है, क्यों, वहां पर लोगों के पास इतना पैसा है कि वो बात बात में फ्लाइट कर सकता है, और उनका जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन नीड होता है उनका हवाई में हो जाता है, मैंने फ्लाइट सिस्टम में हो जाता है, लेकिन फिर जापान में बुलेट ट्रेन है, और चाइना में तो ऑब्वियस, चाइना का बुलेट ट्रेन कॉन्सेप्ट जापान ने एक्चुअली दुनिया को दिखाया, और चाइना ने उसको इम्प्लीमेंट करके समझा दिया कि बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके कैसे किया जा सकता है। তোমার বলছি তো বুলেট ট্রেন অনেক ইম্পর্টেন্ট, আমি বলছি তুমি তো একটা যদি কোনো ধর যুদ্ধ বুদ্ধ লাগলো স্যার, ঠিক আছে, ধরুন দিল্লি তো আমাদের হেডকোয়ার্টার, ঠিক আছে, ওইখান থেকে তোর দু জায়গা থেকে লোক আসতে হয়, একটা কলকাতা থেকে যেতে পারবে অসুস্থ নেই, ওইদিকে গুজরাট থেকেও লোক আসতে হবে, একটা ইয়ে করতে হবে। अरे सर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होना क्या चीज है, तुम लोग क्या बताओ, इट्स अ ह्यूज थिंग, मैंने जब होने से समझ में आ जाएगा सर, होने दो, अभी हम लोग का सोच बहुत छोटा है, ठीक है, जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर हमें क्या बोलता है, गरीब रहो, है ना, हमारे ऑनरेबल दीदी क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ गरीब रहो, तो ये सोच है, गरीब रहो, এখন দেখি না মনে হচ্ছে কারো অ্যাডভাইস নিয়ে চলছে है ना, এখন ও নিজে কিছু বলছে না, ও লোকই দেখছে না। अभी का बात छोड़ो, वो नहीं बोल रहा कि ये जो करंट बंगाल का मेंटेलिटी बना है, नॉट जस्ट बंगाल बिहार झारखंड पूरा इंटायर ईस्टर्न इंडिया का मेंटेलिटी ना बहुत गरीब टाइप का मेंटेलिटी है, कि भाई ठीक है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, हमें ज्यादा ना इधर उधर नहीं चाहिए, जिंदगी तो चल रहा है, बस खाना पीना तो मिल जा रहा है, बस एक छोटा सा नौकरी मिल जाए, ये है बेसिक मेंटेलिटी, तुम यही चीज तुम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाओ, तुम वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाओ, अच्छा साउथ इंडिया का बहुत हाई क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट है कि भाई लाइफ भी हाई क्लास होना चाहिए, पर लाइफ मैंने इनकम हाई क्लास होना चाहिए, पर लाइफ सिंपल होना चाहिए, ये सही बोला, ये सही है। मैं कौन सा चीज सही नहीं बोलता रे, ना मतलब जैसे ये पूरा रिलेट हुआ है। वहाँ का पूरा कुछ ट्रेडिशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, ठीक है,
इसको बोलते हैं हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। तो साउथ इंडिया स्टैंडर्ड है सर, वो स्टैंडर्ड है। नॉर्थ इंडिया का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। जैसे दिल्ली, राजस्थान, इस तरह का जो कल्चर है, इसमें क्या होता है कि हाई थिंकिंग, पैसा थिंकिंग, सिंपल लिविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर है तो उड़ाओ है तो उड़ाओ, है तो दिखाओ। दिलदार भी होते हैं काफी, ठीक है, उड़ाने में झिझकते नहीं है, ठीक है, तुमको हेल्प भी कर देगा, हेल्पफुल भी वहाँ काफी होते हैं। स्पेशली पैसे के मामले में तो पूरा हेल्पफुल होते हैं सर। कितना चाहिए बोलो, बस बोलो। मैं 1 नंबर ही करके दे रहा हूँ कि 2 नंबर ही करके दे रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस तुम बताओ कितना चाहिए तुम। और हमारे बंगालीज में या फिर ईस्टर्न इंडिया में कॉन्सेप्ट है, क्यों आया रे भाई, पैसा ऐसा तो नहीं मांगेगा, ठीक है। मैंने मैं जहां पर मांगा जा सकता है वो मतलब रिलेटिव्स, एक दूसरे को हेल्प करना। यहाँ पर तो कोई किसी का हेल्प तो छोड़ो, उल्टा प्रॉब्लम में भागते हैं, क्योंकि सोच ही हम लोग ऐसे बनाए कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ये मेंटेलिटी डेवलप नहीं हो पा रहा है। चलो ये अलग बात हो जाएगा। नेचुरल गैस में हाँ, नेचुरल गैस में ब्रेकआउट दे दिया है। नेचुरल गैस के बारे में हम लोग कब से बात कर रहे हैं जानते हो सर? अगस्त से, ठीक है, जब नेचुरल गैस गिरा था, याद है? जब नेचुरल गैस गिरा था, गीतिका मोने पड़ছে নাকি सुमित? नेचुरल गैस हाँ सर। अगस्त अगस्त में जब लगातार गिरा था, मैं सबको बोला था सर नेचुरल गैस गिर रहा है ना, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनाएगा, आप लोग ध्यान में रखना। और जितना धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा साइड में, जितना धीरे धीरे उधर ठंडा सामने आएगा, ठीक है, नेचुरल गैस का एक नेचुरल डिमांड बढ़ता है। और रिसेंटली क्या हुआ है मेक्सिको में, मैं लास्ट दिन भी बोला था, तो ये बेसिक ट्रिगर हो गया है। उधर देखो सितंबर खत्म होने का, अक्टूबर गिर रहा है, मैंने ठंडा गिरना धीरे धीरे ऑलरेडी नॉर्दर्न पोल में चालू हो चुका है, ठीक है। मैंने अक्टूबर से ही वहां पर विंटर सीजन का स्टार्टिंग मोमेंटम चालू हो जाता है। ऐसे अक्टूबर बेसिकली इज नॉट एग्जैक्टली विंटर, बट अक्टूबर से वो पहचान चालू हो जाता है, ठीक है, नॉर्थ पोल में। तो नॉर्थ पोल में अगर ये चालू होगा, मैं इसका मतलब क्या, नेचुरल गैस रिलेटेड जो डीलिंग्स है, उसका डीलिंग्स भी धीरे धीरे जो भी डीलर है वो क्या बोलेगा, भाई अभी से इकट्ठा करना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। दुर्गा पूजा से 1 महीना पहले से नॉर्मल जो कपड़ा दुकानदार है वो प्रोडक्ट को गोडाउन में ज्यादा लाएगा ना। क्यों लाएगा? क्योंकि सबको पता है कि भाई दुर्गा पूजा में लोग आएगा, परचेज करेगा, है ना। इट्स वेरी सिंपल थिंग। जैसे ये जो अभी मोबाइल फोन का भी मार्केट चल रहा है अभी सितंबर में, है ना, बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो इसमें भी जो भी कंपनीज है या सेलर्स है, वो मोबाइल को इकट्ठा किया था, ठीक है। कंपनी भी इसी टाइम पे मैन्युफैक्चर करके निकाला, ठीक है। आईफोन 16 प्रो मार्केट में लॉन्च भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद आईफोन 15 या फिर जो भी है उसको भी थोड़ा सस्ता सस्ता करके मार्केट में सेल बढ़ा रहा है, ठीक है। हर ब्रांड अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट को पुश कर रहा है। तो ये सब चीज से क्या समझ में आता है? ऐसे तो मोबाइल वगैरह के ब्रांड में हम लोग बिजनेस ऐसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बट मैं आपको बिजनेस एंगल से समझा रहा हूँ कि हर चीज का एक टाइमिंग एंड सीजन होता है। ये जो पूरा मार्केट का खेल है ना, इट्स प्योरली टाइमिंग का खेल है और कुछ नहीं है। मुझे डेली मार्केट में बैठना पड़ेगा, ठीक है, एकदम हर कैंडल पे टिप्पणी करना पड़ेगा, हम बहुत जानते हैं ऐसा बताना पड़ेगा, कुछ नहीं है। पैसा कमाना एक सीक्रेट है इस फील्ड में, और ये सीक्रेट का एक छोटा सा चीज है सर, टाइमिंग। सही टाइम पे सही डिसीजन लो, आप गेनर रहोगे। ज्यादा उछलने का जरूरत नहीं है, काम, ठंड रहो, शांत रहो, और पता करो क्या होता है। बेसिकली आप लोगों को एक चीज में देखता हूँ, कमोडिटी क्लास में थोड़ा भीड़ कम है, धीरे धीरे ये भी भीड़ हो जाएगा, मुझे पता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के क्लास में वहां पर थोड़ा चिल्ला हल्ला होता है ना, शाउटिंग होता है काफी। तो मैं वहां पर एक चीज देखता हूँ कि आप लोग बहुत पेशेंसलेस हो जाते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा सर, वो जो स्टॉक मार्केट क्लास में आप लोग इतना पेशेंसलेस हो जाते हो ना, ए हबे 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 हबे, ए गल गल गल, ये सब चीजें ना धीरे धीरे ना अपने आप को ना नॉर्मल करो, मैच्योर करो। मार्केट बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है सर, गिर रहा है सर, गिर रहा है सर, सर ये सब चीज ना मार्केट में होगा। बस ये सब चीज के साथ ना आप लोग ना धीरे धीरे ना सिंपल होना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, होने दो, होगा धीरे धीरे, हमें भी इसको समझ में आएगा। मैच्योर बनना सर, ये मेरा आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा आप लोगों से ऑर्डर भी है। ये मार्केट आपको बहुत देगा, बट जब तक आप मार्केट में कामनेस नहीं लाओगे, एक्चुअली मार्केट में कामनेस नहीं है, कामनेस अपने माइंड पे है। अगर माइंड काम रहेगा तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन, नहीं तो ना ऑलवेज ना
हार्ट बीट अप एंड डाउन होगा और गलत टाइम पे एंट्री करो और फिर बोलोगे मेरा हेलो तो लॉस हो गया। एक सेकंड सुमित, ठीक है ले रहा हूँ तेरा बात, ठीक है ये सुमित बोल बोल तू बोल। আমি না যখন অপশনে কাজ করি তিনটে জিনিস অবজার্ভ করি, সিরিয়াসলি বলছি, মানে যখন কলও দিই, প্রথম হচ্ছে তোমাকে ডিসিপ্লিনটাকে মেনটেন করতে হবে। यस। তার তারপর হচ্ছে তোমাকে ফুললি ডেডিকেশন দিয়ে তুমি যে যাই দেখো, অপশন চার্ট দেখো বা তোমার মানে অপশন চেন দেখো বা তুমি চার্ট দেখো, আমি কিন্তু চার্ট দেখি না, আমি চেন দেখেই কল দিই, ঠিক আছে? जानी। ডেডিকেশন আর ডিটারমিনেশন তিনটে জিনিস মারাত্মক লেভেলে দরকার। ऑब्वियसली ये तो एकदम बेसिक थिंग है, ठीक है। मैं तो साधारण भाषा में बोलता हूँ, तू तो एकदम कॉर्पोरेट भाषा में बोला, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, ठीक है। सुमित एकदम कॉर्पोरेट लैंग्वेज यूज किया, ठीक है। 3 Ds इन कॉर्पोरेट, ठीक है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। बट हमें ना इतना कॉर्पोरेट भाषा थोड़ा कम समझ में आता है, ठीक है। मेरा कॉर्पोरेट लाइफ भी थोड़ा कम है, बट ये यू आर राइट सुमित, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं साधारण भाषा को समझता हूँ और साधारण भाषा में ही समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं अगस्त में बोला था नेचुरल गैस जब गिर रहा था ड्यू टू मार्केट सिचुएशंस, मैं बोला था ट्रैक करते रहो। अच्छा देखो, ट्रैक करते रहो का क्या मतलब है, मैं कई बार बोलता हूँ कि आप लोग वॉच करो, आपको परफेक्ट टाइमिंग जरूर मिलेगा, ठीक है। आप एक चीज ख्याल करो, अगस्त के एंड से सितंबर के एंड तक पहुंच गए हम लोग, अगस्त के एंड से सितंबर के एंड तक पहुंच गए हम लोग, ऑलमोस्ट 1 मंथ कवर हुआ। इस 1 मंथ में नेचुरल गैस में ये मिनी है, इसमें क्या चेंजेस हुआ या फिर टेक्निकली मार्केट कैसे बिहेव किया, अगर आप देखो तो मोटा मोटी रेंज बाउंड है, पूरा 1 मंथ फुल्ली रेंज बाउंड है, यस और नो। अब इसका रेंज बाउंडनेस को अगर हम लोग यहाँ पर इंडेक्स प्राइस पॉइंट से देखा जाए तो 208 तक नीचे आया था ऑलमोस्ट, है ना, 208। फिर देखो यहाँ पर थोड़ा सा बीच बीच में 208 से 214, ठीक है, फिर नीचे आके 210, फिर थोड़ा सा ऊपर गया 214, फिर नीचे आके 205, ठीक है, फिर ऊपर जाके 219, फिर नीचे आया 209, फिर ऊपर गया 220, फिर नीचे आ गया 210, फिर थोड़ा सा कोशिश करके 215, फिर 212, फिर से 217, ऐसा करके 213, 222, 215, फिर 225, फिर नीचे आके 211, ठीक है। लास्ट 1 मंथ ये टोटली एक रेंज बाउंड सिचुएशंस, बट हाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव, डाउनफॉल होने के बाद ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट विद अ रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट। पॉजिटिवली रेंज बाउंड माने ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम डाउन साइड में साइडवे से नहीं है, अप साइड में साइडवे। तो ये सिचुएशंस पे आप डेली बेसिस पे भी ट्रेडिंग देख सकते हो, या फिर अगर आपको एक बड़ा सा मूवमेंट के लिए वेट करना है, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे का फंडामेंटल ट्रिगर क्या है, जो आपको मैंने नेचुरल गैस के टाइम पे जो लोगों ने क्लास किया था, जो अभी बाद में मैं फिर से करवाऊंगा सर, क्योंकि सब रिपीट होता जाएगा। नेचुरल गैस पढ़ाने के टाइम में मैं बार बार बोला था कि जितना हम लोग अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स अक्टूबर नवंबर, नेचुरल गैस में एक धीरे धीरे बीच बीच में, और यहाँ पर बीच में क्या हुआ, वो मेक्सिको का वेदर कॉन्सेप्ट, मेक्सिको का वेदर बेसिकली ये ट्रिगर करने में हेल्प किया। মেক্সিকোর ওয়েদারটা এরকম না হতো স্যার, তাহলে তার মার্কেটটা উঠতো না বুঝি, এতটা উঠতো অক্টোবরের 15 অব্দি ওয়েট করতে হতো আমাদের। এই 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 হাইপটা পাওয়ার জন্য अक्टूबर 15। 15 তারিখ অব্দি আমাকে ওয়েট করতে हाँ, इसमें अभी भी दम है सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें अभी भी दम है। এখানে মেনলি এই দোকান থেকে যেটা রেজিস্ট্রেশন ये 244 है ना सर, बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है मंडे को, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी तुरंत एकदम सीधा 300 पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आपको बीच बीच पे, जैसे यहाँ पर देखो लास्ट दिन अगर आप देखोगे, मैंने मैं बेसिकली बोल रहा हूँ 27 को ये मार्केट बहुत लंबा खींचता है ना सर, इसलिए हर दिन मार्केट में ना कभी कभी सिर्फ पॉजिटिविटी रहता है, बट मैक्सिमम दिन दोनों रहता है, ठीक है, दोनों रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। एक बार मार्केट उठता है, एक बार मार्केट गिरता है, इंडिया खेला तो टैकल पहुंचे। ठीक है। डेली बेसिस में तुम देखोगे, जैसे तुम देखो ना 26 तारीख को ही देखो, 26 तारीख मार्केट सीधा ये देखो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होके पहले मोमेंटम दिया है, उसके बाद सीधा नीचे गिराया, नीचे गिरा के नेक्स्ट दिन गैप डाउन से ओपन हुआ 27 तारीख को, है ना। उसके बाद यहाँ पर लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी बनाया, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक प्रॉपर मॉर्निंग स्टार, ठीक है।
प्रॉपर मॉर्निंग स्टार, मैंने इससे सुंदर कैंडल और हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग स्टार होने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कैंडल क्या कहता है कि पैटर्न वन, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन, मैंने ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड, पैटर्न वन होना चाहिए रेड, फिर एकदम प्रॉपर एक दोजी बीच में, वो भी लिटिल बिट गैप देखे, ठीक है। मैंने ये बेसिकली ना सही टाइमिंग में चीजें बन रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कैंडल एक्चुअली हमें टाइमिंग के ऊपर बेस करके बताते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा मौका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, एंट्री पॉइंट सही होता है, आप एंट्री सही टाइम पे कर पाते हैं। इसलिए कैंडल पे जितना ग्रिप रहेगा, और कैंडल का ग्रिप बनेगा, ऐसे तो रोज ही कुछ ना कुछ जान पहचान का कैंडल आपको दिखाई देता है, बट कब बन रहा है, किस सिचुएशंस में बन रहा है और आइडेंटिफाइबल है कि नहीं है, ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ওটাই স্যার, কখন হচ্ছে ডাউন ট্রেন্ড হচ্ছে আপ ট্রেন্ড ওটাই বলতে পুরো জায়গায় স্যার ইয়ে বিআরই আমি সিগন্যাল দিয়েও দিয়েছি কোনটা এটা? উপরে স্যার দেখি ডান দিকে এটা হ্যাঁ এটা বলছি। লিখে নামে না ইয়ে देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये आवरली चार्ट पैटर्न पे है, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ सर। तो मोटामोटी 27 तारीख को अगर तुम देखोगे तो सिचुएशंस यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार देखिए, मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी था नेचुरल गैस में, और एकदम 200 अगर किसी ने 32 में भी एंट्री लिया है सर अराउंड 232, तो 244 बहुत होता है অনেক আগে আর টিকে আড়াই पर टीक में 250, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे 250 मैंने 244 माइनस 232, ठीक है। अगर चलो 242 ही ले लेता हूं मैं, ठीक है, तो 10 पॉइंट का मूवमेंट है, 10 इंटू 250 माने 2500 टाका का आपको यहाँ पर फायदा है, 2500 एक लॉट में। और एक लॉट में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा नेट गैस मिनी में सर, मोटा मोटी ऑन एन एवरेज? फ्यूचर बताइए, ऑप्शंस बताइए না না, তুমি যেটা বললে ফিউচারে বললে, অপশনস হলে তো প্রিমিয়ামে হবে, এটা ফিউচারেই বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও এটা এখানেই দেখে নিচ্ছি। দেখো नेट गैस मिनी, ठीक है, बाय कितना था मेरा 232, ठीक है, सेल कितना है मेरा 242, क्वांटिटी एक ही है, लॉट फ्यूचर में लिया मैंने, ठीक है। ये देखो 2447, ये आपका प्रॉफिट है। ओवरऑल टर्नओवर आपका इतने का है, इतना आपको देना नहीं होता है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से दिखा रहा है। और अगर आप इसको मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, अक्टूबर फ्यूचर में क्लिक करो, वही अप्रोक्स 9-10 हजार के आसपास, 8-9 हजार, 8-9 हजार इन्वेस्ट करके यहाँ पर 2 से 10 हजार का प्रॉफिट एकदम श्योर शॉर्ट सिस्टम में बना था, ठीक है। कोई बात नहीं, मार्केट बार बार मौका देता है, आपका एनालिसिस सही टाइम पे सही होने से ही आप ये चीज कर सकते हो। देखो मार्केट में ऑलवेज डिफरेंट साइड में डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी रहता है, बस आपका दिमाग काफी शार्प होना पड़ता है। ये मार्केट में सर आपको क्या बताऊं, इट्स अ वेरी वेरी शार्प थिंकिंग एरिया। मैंने सीखना तो पड़ेगा, दिमाग को मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, शांत रहना पड़ता है, ज्यादा उछल कूद करने से कुछ नहीं होता यहाँ पर। ये मार्केट है और ये पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी है, जितना भी चीज दुनिया में हम लोग बिजनेस एंड एवरीथिंग पर्पस में यूज करते हैं, वो हर चीज इसके अंदर आ जाता है। तो इसके बाहर और क्या बचा, क्या है, कुछ नहीं है ऊपर वाले को छोड़ के। अगर स्पिरिचुअलिटी एंड भगवान वगैरह कॉन्सेप्ट जो है उनको साइड कर दो, ठीक है, साइड इसलिए करते बोलता हूँ क्योंकि वहां तो हम लोग का सोच नहीं जाता, ठीक है, हम लोग साधारण इंसान है, संसारी इंसान है। बाकी जो भी दुनिया में है, ठीक है, ये गाड़ी चलेगा कि नहीं चलेगा, पेट्रोल बनेगा कि नहीं बनेगा, हर चीज अल्टीमेट इसी के अंदर है। तो ये चीज इतना आसान तो नहीं, लेकिन हमें बस वो छोटा सा ट्रिगर चाहिए कि भाई कब बढ़ सकता है और कब गिर सकता है। अच्छा क्या हम लोग का एनालिसिस नेचुरल गैस पे लास्ट मंथ जब हुआ था गलत था क्या? एकदम सही था नेचुरल गैस पे। ठीक जैसा बोला था वैसा ही मार्केट एग्जैक्टली बिहेव कर लिया। कोई बात नहीं, ये जस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मैंने बोला हो गया, मैं जो बोलता हूँ वही होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं बस आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ वो विश्वास पाने के लिए खुद के ऊपर कि ऐसा होता है, ठीक है। अब बस वही धीरे धीरे ट्रिगर पॉइंट को ढूंढना है, हर चीज का अपना अपना ट्रिगर पॉइंट है कि कब बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा। नेचुरल गैस में भी दम है, वॉच करते रहो सर। हाँ बीच बीच पे करेक्शन मिलेगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसका फ्यूचर ब्राइट है। और बाद में तुम पूछ लेना सुमित से। কি বন্ধ করে দিয়েছে? ভোডাফোনের ইয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, অফার বন্ধ করে দিয়েছে, তারপরে
এখন টাওয়ারও প্রবলেম হচ্ছে, ভোডাফোনের নিয়ে ফোন নেটওয়ার্ক প্রবলেম থোড়ি হচ্ছে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো হচ্ছিল, ঠিক আছে, এখন তো শুনছি আরো প্রবলেম হচ্ছে, কিসে এবার বলে নেটওয়ার্ক নিয়ে রিচার্জ দিয়ে যাবেন ভোডাফোন। এরকম বলেছে? হ্যাঁ এরকম তো আমি শুনিনি কিছু। রিচার্জ হবে। হ্যাঁ তাহলে তো একটা বলছি ভোডাফোনের ছিল একটা বলছে। ঠিক আছে, আবার তুমি চঞ্চল মাথা করছো তো। না আর কিছু একটা তো হয়েছে ভোডাফোন। ঠিক আছে, সে আমি দেখছি, সুমিতকে আমি বলে দিচ্ছি, সুমিত খবর নিয়ে নেবে। সুমিত খবর নিয়ে একটু গ্রুপে পোস্ট করবি তো ভোডাফোনের কি ব্যাপার। আর কি হয়েছে কি? ভোডাফোনকে ওই যে করেছে না, অপশন ট্রেডিং থেকে ডিলিস্টিং করেছে, মানে অপশন ট্রেডিং থেকে ব্যান করেছে। আর কতদিনের জন্য করেছে, কেন করেছে, এইসব জানতে চাইছে, একটু খোঁজ খবর নিয়ে ভেতরের খবর একটু ছাড়তে বলছে, ইনসাইডার ট্রেডিং। আমি বাস এটাই গ্রুপে। আচ্ছা, এসব আমি বলছি না কিন্তু, पप्पू रिक्वेस्ट है। अच्छा, चलो सर ठीक है, हम लोग एक जो टॉपिक चल रहा था उसी में थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, बाकी जो मार्केट्स का बाकी जो टॉपिक है उसमें क्या सिचुएशन है एक बार देख लेते हैं। नेचुरल गैस तो आप लोगों ने देखा, चाहे मिनी देख लो या ये क्रूड ऑयल का क्या सिचुएशन है। अच्छा, तो क्रूड ऑयल भी मोटा मोटी पॉजिटिव रहा है ना, ভালো না কি ভালো না। अच्छा, क्रूड ऑयल मोटा मोटी लास्ट कुछ दिनों से गिरा है सर। क्रूड ऑयल मोटा मोटी 6500, ये मई छोड़ो सर, ये दिखाई दे रहा है सर 5694 तक आया है, लास्ट दिन 5969 से। क्रूड ऑयल का टेक्निकल सिचुएशन थोड़ा मैं देख लेता हूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल मार्केट का हीरोइन है सर, इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, ऐसा मोमेंटम बहुत सुंदर दिख रहा है। क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल देखो सर, क्रूड ऑयल का मुझे तो लग रहा है ये नियरेस्ट सपोर्ट में आ गया। हाँ, ऑलमोस्ट सपोर्ट में चल रहा है सर इसका। तुम अगर लास्ट ব্রেক করে যেটা বলছেন এই উইকে দিলেন ব্যাপারটা, এটাও মনে ব্রেক করে দিয়েছে। लास्ट 1 मंथ का अगर तुम देखो तो इसका सपोर्ट मोटा मोटी मुझे दिखाई दे रहा है। मैं एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका मुझे सपोर्ट तो पूरा दिख रहा है कि ये एरिया है सपोर्ट का, ওই সাপোর্টটা ব্রেক করে দিয়েছেন ওটা আমরা 5800। 5800 नियर टर्म सपोर्ट मुझे दिख रहा था। वो और भी नीचे आके, अच्छा सपोर्ट जोन में आके एक चीज ख्याल करो सर, काफी दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, माने इसको बोलते हैं सर एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। हम लोग इसको टेक्निकल में पढ़ेंगे। जब मार्केट डाउनफॉल होने के बाद फिर वो आप भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसी पॉइंट पे साइडवेज मोमेंटम बना के रखता है, तो बेसिकली वो एक फर्दर मोमेंटम का वेट कर रहा है। कभी कभी ये सिचुएशंस बहुत लंबा चलता है, कभी कभी बहुत पेशेंस का एग्जाम भी लेता है ये, लेकिन इस टाइम पीरियड को वॉच करते करते अगर आप सही दिन का इंतजार कर लो और क्रूड ऑयल में मोमेंटम पाने का मौका मिल जाए, तो सही टाइम पे एंट्री होने से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रिगर करेगा। इसके लिए सैटरडे संडे, मैंने आज कल अगर कुछ खबर है कि नहीं देखो, ठीक है, कुछ तो खबर मिलेगा क्रूड ऑयल रिलेटेड कि क्या सिचुएशंस है। अगर ऐसा हुआ तो फिर या तो ज्यादा, जैसे करंट सिचुएशंस क्या है क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना। चाइना में प्रोडक्शन लेवल के लिए मैं काफी दिनों से बोले जा रहा हूँ कि चाइना का प्रोडक्शन डिमांड खराब है, चाइना में प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है। अमेरिका में प्रोडक्शन डिमांड बढ़ने वाला है, उसके लिए अभी फाइनेंशियल पॉलिसी आया है, लेकिन अभी फाइनेंशियल पॉलिसी के बेसिस में कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बेसिकली क्या डिसीजन लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अमेरिकन मार्केट में क्रूड ऑयल का डिमांड अगर बढ़ता है तो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक अच्छा बात होता है। नॉर्मली अभी क्या हुआ है कि क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है वो लोग क्या किया, करेंटली उसको कम कर दिया। ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इतना आसान चीज नहीं है, इसके पीछे ना बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट चलता है कि कुछ दिनों के लिए तुम क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को ना बंद करने का खर्चा बहुत आता है। नॉर्मली जब वो लोग जो माइनिंग करता है तो जो बड़ा बड़ा मशीन यूज करता है, वो मशीन को आप जल्दी जल्दी बंद नहीं कर सकते। चल रहा है तो चलने दो, निकालते रहो, स्टोर करो। लेकिन अगर तुम डिसीजन ये ले रहे हो कि हमें
एक महीने के लिए या 15 दिन के लिए, ठीक है, या एक 1 मंथ के लिए मुझे सारे के सारे माइनर्स को बंद करना है, मशीन्स को बंद करना है जो ऑयल को मिट्टी के नीचे से एक्सट्रैक्ट करता है या समुद्र के नीचे से एक्सट्रैक्ट करता है, उसको बंद करने का डिसीजन बहुत हाई कॉस्टिंग वाला होता है। तो आप समझ लो कि अगर कभी डिसीजन ये से होते हैं जैसे रिसेंटली हुआ है कि वो लोग प्रोडक्शन को कट कर रहा है, दैट मीन्स ये बहुत बड़ी बात है कि मार्केट डिमांड उनके लिए खराब है। तेल तो आज डिमांड, ठीक है, तभी जाके वो लोग प्रोडक्शन को कट करता है। एक फैक्ट्री अपना मशीन चलाना बंद कर रहा है, ऐसा बात है। अच्छा, इसमें क्या नया ट्रिगर आ सकता है? जैसे मेरे को हल्का कानाफूसी है सर मार्केट का, खबर है कि यूक्रेन रशिया का वार बंद हो सकता है। सुन रहे हैं सर रिव्यू। कानाफूसी है, कानाफूसी है, कानाफूसी समझते हो ना, गॉसिप गॉसिप में ऐसा लग रहा है, और इसमें शायद इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ছিল না। हाँ हाँ बोल। এর ব্যাপার ও, তেলের দামটা কমে যাবে, ক্রুডের দাম কমে যাবে। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इन दैट केस देख, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि रशिया पे तो बैन लगा है ना, तो रशिया का सैंक्शन जो लगा है वो अगर हट जाता है तो मार्केट में तेल का जो करंट प्राइस है, रशिया का तेल भी मार्केट अगर ओवरऑल चालू हो जाएगा तो मार्केट में तेल सप्लाई बढ़ जाएगा, तो तेल का दाम और गिर सकता है। तो तेल एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये सुमित ने अभी उठाया कि तेल का दाम गिर सकता है, इसीलिए मैं ये पॉइंट उठाया कि अगर रशिया यूक्रेन वार यहाँ पर एक होता है तो ट्रिगर, ये भी एक ट्रिगर है, चाहे ट्रिगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो ये एक सिचुएशन है। लेकिन मानो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, टेंशन जैसा है वैसा ही रह जाता है। एक्चुअली इसमें पूरा खेल जियोपॉलिटिक्स का है। यूएसए एंड नाटो कंट्रीज माने वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, यूएसए एंड नाटो, ये लोग मिलके रशिया को साइडलाइन करना चाहता है। इस साइडलाइन के गर्मी से, मैंने बेसिकली गुस्से से, ये नाटो का जो मेंबर है यूक्रेन, जो एक्चुअली मेंबर बनने के लिए जा रहा था और जो रशिया का पड़ोसी भी है और इनके साथ रशिया का हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी है, तो वो नहीं चाहते कि भाई वो नाटो का मेंबर बने, ठीक है, और इसकी इसीलिए वो जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन ये रशिया नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है, वो किसके साथ जाएगा किसके साथ नहीं जाएगा वो उसके ऊपर है। लेकिन बात तो ऐसा ही हो गया ना, कल अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को यहाँ बैठे बैठे बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करेगा, क्या इंडिया इस बात को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है? कल अगर बांग्लादेश चाइना के साथ डिप्लोमेसी इतना ज्यादा करता है तो क्या इंडिया इस बात को बहुत पॉपुलरली लेगा? कल अगर यूएसए बांग्लादेश में जगह लेना चाहता है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना के ऊपर निगरानी रखने के लिए, ऐसे मांगा था शेख हसीना से, शेख हसीना मना कर दिया, बिकॉज शेख हसीना का औकात क्या है, बेसिकली इंडिया बोल रहे कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाद में तो शेख हसीना का क्या वो अलग बात है। तो चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे चाइना आ जाए, चाहे पाकिस्तान, कोई भी किसी के साथ भी बांग्लादेश कुछ भी करे, हम नॉर्मली बांग्लादेश को ये सब करने से रोकने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि बात कुछ वैसा ही। लेकिन लीगली देखा जाए बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट सोवेरेन कंट्री है, वो अपना डिसीजन ले सकता है, वो किसके साथ जाएगा और किसके साथ नहीं जाएगा। लेकिन डिप्लोमेसी इज देयर। কিন্তু এখানে পুরো দুটো জিনিস কি হবে স্যার, রাশিয়ার উপর যে ব্যানটা যেখানে উঠে যাবে আর নেটোতে ইউক্রেন ঢুকে যাবে, যদি সলিউশন হয়, হ্যাঁ। সলিউশন কি হবে? রাশিয়া বলছে আমার উপরে ব্যান দিতে হবে, আমি দেখছি, তো ইউক্রেন বলছে আমার তো নেটো में ঢোকার জন্য আমি বলছি আমারও তেল বিক্রি করতে হবে। ना, इसके लिए रशिया को सबसे पहले अमेरिका और इसको यूरोप को ये समझना पड़ेगा कि रशिया को साइडलाइन करने का जो टेक्निक ये लोग ये कर रहा है, ये सब टेक्निक से हटना चाहिए। एक मिडिल पथ ढूंढना चाहिए जिसमें एक शांति का वातावरण बना रहे। और इसमें जो पहला चीज होगा, पहले तो ऑब्वियसली तेल का दाम गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे जो रशिया का जो पोटेंशियल्स है, हम लोग जानते हैं वो कितना पोटेंशियल कंट्री है, अगर रशिया भी अपने पोटेंशियल पॉइंट्स पे आ जाते हैं, यूरोप में जो प्रॉब्लम है, यूक्रेन भी कुछ कम खराब कंट्री नहीं है, उसका भी अपना एक पोटेंशियल है, तो धीरे धीरे अगर पीसनेस आ जाता है तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, और इसमें तेल का डिमांड फिर से धीरे धीरे ओवरऑल बढ़ने लगेगा। लेकिन बोलना आसान है, सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज पता चलेगा। ठीक है, अब मानो कि अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है और ओवरऑल जो सिचुएशन है ऐसा ही चलता रहता है, तो फिर पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ेगा। ऑब्वियसली अमेरिका का वोट, अगर ट्रम्प आता है, नॉर्मली ट्रम्प प्रो रशिया है, ठीक है, कॉम्पेरेटिवली मैंने अमेरिकन मेंटेलिटी से वो रशिया के साथ
इस तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहता है, लेकिन बाकी लोग चाहते हैं कि नहीं रशिया को साइड कमला हैरिस। हाँ तो कैसे जाएगा, वो तो सेम पार्टी से है ना, सेम पार्टी सेम आइडियोलॉजी। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली नेक्स्ट, चाहे नेगेटिव ट्रिगर एंड पॉजिटिव ट्रिगर के लिए मैटर करता है, बट हाँ बीच बीच में ये तुमको थोड़ा सा इधर देखने को मिलेगा। वो बीच बीच में जो इंडिविजुअल पॉजिटिव डिमांड एंड नेगेटिव डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो चलता रहेगा, तो उसके ऊपर वॉचफुल रहो। फर्दर कुछ अपडेट होने से मैं आपको बोलता हूँ। ये मैं आपको एक हाँ हाँ मैं करेंटली एकदम टेक्निकली देखो, कैंडलस्टिक समझो, उसके बेसिस में करेंटली तो साइडवेज है। ठीक है, कौन सा? हाँ ये एक इवनिंग स्टार है यहाँ पर लास्ट में, लेकिन ये इवनिंग स्टार का क्या है, इवनिंग स्टार इसको प्रॉपरली नहीं बोल सकते। क्योंकि इवनिंग स्टार क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इवनिंग स्टार तो अप ट्रेंड में होना चाहिए, ये तो साइडवेज में है। ठीक है, तो ये साइडवेज इस बार हाँ। ठीक है, कौन सा? ऊपर वाले। नहीं ये हैंगिंग मन तो सिंगल है। अच्छा अच्छा समझ गए। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, वो बोल रहे ये तीनों को मिला के, ये तीनों को मिला के अपर ट्रेंड में इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। ऐसे बनने के बाद नॉर्मली मार्केट डाउनफॉल जाता है, लेकिन ये अप ट्रेंड में बना है और ये जो है ये साइडवेज में बना है, तो देयर इज अ डिफरेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम है, पर ये नेगेटिव मोमेंटम कितना ज्यादा डाउन जाएगा इसको लेके डाउन है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना? तो अभी टेक्निकल चार्ट देखते रहो, फर्दर कुछ अपडेट होने से खुद भी जानो और सबको जानो। फिर से अच्छा देखो, हम लोग लास्ट दिन दो प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना स्टार्ट किए थे, दैट इज पोड़वे की पोड़वे ना, लेड एंड निकेल, है ना? इसमें लेड के बारे में मैंने आप लोगों को इतना बोला था कि लेड का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, लेड का जो यूज क्या है, लेड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं या बंगाली में बोलते हैं शीशा बोलते हैं। वो लास्ट दिन रजत जी गलत इंटरप्रिटेशन लिया था, याद है? वो शीशा मैंने वो बेसिकली ग्लास समझ लिया था, शीशा हिंदी में बोलते हैं ना ग्लास को। तीनों বলা যাবে মানে টিনের চেয়ে একটু শক্ত মানে ওই যেটা লোহা টাইপের। হ্যাঁ লেড দেখতে এরকমই হয়, লোহার মতোই দেখতে হয়, যে এরকম হয় দেখতে, এই যে ছবি দিয়েছে তো এখানে খুব হাড্ডি হয়। এটা কিন্তু টিন না বা লোহা না, লেড এটা এক ধরনের মেটাল। ঠিক আছে, এর ম্যাক্সিমাম ইউজ কোথায় হয় এটাও আমরা কালকে লাস্ট दिन দেখেছিলাম। लेड का मैक्सिमम यूज कहाँ होता है सर? शोल्डर्स पे, जो इलेक्ट्रिकल काम पे आता है, इंडस्ट्रियल लाइनिंग एंड सिंक्स पे, टैंक्स पे, चेम्बर्स पे, रेडिएशन के अगेंस्ट में यूज किया जाता है, जहां पर रेडिएशन बहुत होता है। लेड एसिड इसका सबसे ज्यादा यूज है सर, लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज, मतलब बैटरी एसिड से जो बैटरी बनता है लेड्स के थ्रू से बनाया जाता है, ये इसका सबसे ज्यादा बड़ा यूज है और इसी में इसका मैक्सिमम यूजेज लगा रहता है। द लेड फाइल यूज्ड फॉर कवरिंग केबल्स, तार को कवर करने में यूज करते हैं, पिगमेंट्स एंड कंपाउंड्स वगैरह में भी यूज करते हैं, शिप बिल्डिंग में भी लेड का यूज है। ठीक है सर, ये यूज जान के क्या होता है सर? होता है ना, यूज पे ही तो डिमांड सप्लाई डिपेंड करता है। अगर यूज नहीं होगा तो फिर डिमांड सप्लाई कहाँ से? आपको ये बोलेगा ये 4 पॉइंट्स जान के हमको क्या होगा? अरे यही 4 पॉइंट्स में ही तो लेड का मार्केट डिमांड डिपेंड करता है, निकल का मार्केट डिमांड डिपेंड करता है ना? मैं आपको कॉपर का भी एक अपडेट दूंगा, रुक जाओ। अच्छा लास्ट दिन एक डेटा दिखाया था आप लोगों को कि लेड को समझने के लिए, अच्छा लेड का एक हिस्ट्री भी बोला था कि रोमन एम्पायर लेड को बहुत मैंने एक्सटेंसिवली यूज किया है। ठीक है, मैंने एक्सटेंड भी और इंटेंसिव भी, मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है रोमन एम्पायर, और अल्टीमेटली रोमन एम्पायर का जो डाउनफॉल है, डाउनफॉल माने खत्म होने का मेन रीजन भी लेड ही है। ये लोग तो पानी का पाइप तक लेड का बना दिया था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये लेड बॉडी के लिए मैंने फूड के हिसाब से नॉट गुड फॉर हेल्थ, इवन ये पूरा खत्म कर देगा थी। आर्सेनिक थोड़ा डिफरेंट है, मैंने अगर टू मच लेड रहेगा तो बहुत ही खतरनाक है, और यही कारण है रोमन एम्पायर का डाउनफॉल का, मैंने पूरा एक सिविलाइजेशन खत्म हो गया था। समझ में आ रहा है सर?
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डेटा दिया है, वर्ल्ड रिफाइंड लेड सप्लाई एंड यूजेज 2011 से लेके 2016 का। इसमें ये बताया जा रहा है कि कितना माइन प्रोडक्शन है, कितना मेटल प्रोडक्शन है और कितना मेटल यूजेज है। इसका एक वेबसाइट भी दिया है, क्या ये काम करेगा, देखता हूँ क्या बोलता है सर। एक सेकंड। जो लोग सिर्फ मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, उसमें इससे रिस्क कर रहे हैं खाना में। मिट्टी के बर्तन में तो कोई जैसे प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई तो जैसे उसमें भी लीड में तो लीड ज्यादा होता है। लेकिन हर मिट्टी में नहीं होता है नॉर्मली। लेड हर तरह का मिट्टी में नहीं होता है। नॉर्मली जिस मिट्टी के बर्तन से बनाया जाता है ना, उसको हमारे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं एंटेल मिट्टी, ठीक है। उसमें ना एक नॉर्मली ना ये कोलकाता या आसपास के जो एरिया है वहां पर ये वाला मिट्टी नहीं मिलता है। ये मिलता है थोड़ा सा गैंजेस डेल्टा से दूर, ठीक है। वो ना थोड़ा हार्ड होता है और उसके ना बहुत क्या बोलते हैं, चिट 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 करता है। यहाँ का मिट्टी जो है, इस मिट्टी में तुमको कहीं जगह में लेड ज्यादा पाया जाता है। यहाँ के मिट्टी में बालू होता है और कादा होता है, ठीक है। स्लीपरी भी है और थोड़ा बालू भी कहीं कहीं ज्यादा होता है। लेकिन मैं ये जिस मिट्टी में नॉर्मली बर्तन वगैरह का बात तुम कर रहे हो, वो मिट्टी ना देखने में थोड़ा पीला टाइप का होता है, येलो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और उस मिट्टी में नॉर्मली लेड का संभावना आई थिंक कम है, आयरन मिलता है उसमें, इसलिए उसमें येलोनेस रेडनेस देखने को मिलता है। मिलावट के जमाने में कौन विश्वास करेगा? नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। और ऐसे में मिट्टी रिफाइन किया जाता है। बट सर यस, मिट्टी का बर्तन अच्छा है, गुड फॉर अच्छा हेल्थ, होता है, लेकिन काफी कोई अच्छा होता है, ऑथेंटिक वाला मिले तो ठीक है। ये कम से कम ये जो लोग, ये जो आजकल हम लोग यूज करते हैं ना घर पे, क्या बोलते हैं उसको, कुकर कुकर उससे कुकर कुकर तावा यूज नहीं करते, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें तेल चिप चिप नहीं कर बने, नॉन स्टिक। नॉन स्टिक, ठीक है। वो जो नॉन स्टिक का जो कोटिंग होता है, वो कोटिंग तो बहुत ही खतरनाक, कैंसरस कोटिंग, वो उसमें तो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लॉन्ग रन में बहुत खतरनाक है, हाईली कैंसरस, क्योंकि वो पूरा केमिकल कोटिंग है। अगर किसी के भी घर में है, वो सब बर्तन यूज करना बंद कर दो, सीरियसली। और ये साइंस भी बार बार चिल्ला के बोल रहा है कि वो कोटिंग वाला जो बर्तन है, स्पेशली क्या बोले तुम्हें भी उसका नाम, नॉन स्टिक। नॉन स्टिक पैन, वो खतरनाक है। ये देखो सर, यहाँ पर ना ये जो भी डेटा है, माइन प्रोडक्शन, मेटल प्रोडक्शन एंड मेटल यूजेज, एक्चुअली प्रोडक्शन और यूजेज ये दोनों डेटा आप लोगों को हमेशा चाहिए होगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एक साइट दिया है। बाकी आप बाद में ना थोड़ा सा और इसके बारे में मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा। देखते हैं सर ये साइट खुलता है कि नहीं खुलता। हाँ, खुल रहा है सर। इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप, ठीक है। इनके वेबसाइट में तुमको मिलेगा सर, मंथली स्टैट्स, स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, वर्ल्ड जिंक फैक्ट बुक, ठीक है। एक्टिविटी स्टैटिस्टिक्स, ये देखो मंथली बुलेटिन एंड डेटा स्प्रेडशीट्स। ये सब डेटा बड़ा काम का चीज होता है सर। तो रीड करना है। हाँ, रीड सिंपल, ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर ना साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि आपको क्या डेटा चाहिए। आप लोग ना बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बेसिक दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो हर किसी का अपना अपना तो क्या हो गया ना, जैसे कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट मतलब लगेगा। नहीं, देख किसी भी चीज में ना अति बहुत खतरनाक है। क्या तुम, यही चीज प्रॉब्लम अति इज ऑलवेज वेरी खतरनाक। मैंने बेसिकली, हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं। ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ी ना तुमको साइंटिस्ट बनना है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि क्या बोल रहा था उसको, नॉन स्टिक का जो बात है। अब नॉन स्टिक अच्छा है बुरा है भला है, तुमको क्या लेना देना। तो बस देखो उसका 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 मार्केट है कि नहीं है। ठीक है, तो मार्केट है तो फिर उसमें आ जाओ। अब तुम अगर उस पर घुस के, सर ये नॉन स्टिक का जो केमिकल है ना, ये बहुत खतरनाक है, आगे जाके दिक्कत होगा, ये तुम दिमाग में लाओगे तो वो अलग बात है। वो तो मैं ऐसे ही एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपको एडवाइस किया कि घर पे खाना मत खाया करो। लेकिन इसके साथ इसका बिजनेस का, वो तो अल्कोहल भी खाना बना है, कौन खाना बंद कर रहा है ना, ठीक है। अल्कोहल का जितना स्टॉक मैंने एनालिसिस करके दिया था, सारे के सारे स्टॉक ऑलमोस्ट 90% केस में मूव दिया है, आगे भी और देगा, है ना। तो मैं कब बोला था, एक महीना पहले बोला था, ठीक है। तो ऐसे तो मना बहुत कुछ होता है, तो कौन सा मना लोग सुन लेता है। आपको कमाना है, आप मार्केट देखो,
ठीक है, इसलिए ज्यादा जानने में खतरा ये हो जाता है। स्प्रेडशीट मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे मिलता है शायद, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका और भी जगह है आपको मैं बताऊं। सर लीड और जिंक रिएक्शन में दिक्कत है। होता है। वही ना, लीड एंड जिंक स्टडी को। हाँ, मैंने इसमें लेड भी है और जिंक भी है। मैंने बेसिकली नॉर्मली ये संस्था लेड एंड जिंक दोनों के ऊपर स्टडी करते हैं। जिंक वन दोस्ता। हाँ, जिंक माने दोस्ता जो टकरा। ये देखो ये मिला है सर, ये 21 अगस्त 2024 का डेटा है। वही देखो, माइन प्रोडक्शन, मेटल यूजेज, देख रहे हो? ये देखो इसमें वर्ल्ड रिफाइंड जिंक सप्लाई एंड यूजेज, ये जिंक का है और ये लेड का है। ठीक है, इसमें हम लोग अभी जो चीज पढ़ रहे थे, कहाँ चला गया ये जो डेटा है, ये डेटा भी इसी तरह से उठाया गया है सर। 2011 से 15 का कितना टोटल प्रोडक्शन लेवल हुआ है। ऐसे अगर 15 का ही एक डेटा देखो तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। प्रोडक्शन देखो, माइन प्रोडक्शन, पहले माइन, उसके बाद मेटल, उसके बाद यूजेज। तो माइन प्रोडक्शन को साइड करते हैं। माइन माने तो बेसिकली माइनिंग करके जो मिल रहा है। फिर बाद में मेटल कितना प्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें 10,836 टन्स का टोटल मेटल प्रोड्यूस हुआ है और मेटल का यूजेज हुआ है 10,864 का। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रोडक्शन और यूजेज में यूजेज कॉम्पेरेटिवली लो है, प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा है ना। कैसा है सर? हाँ, मैंने कुल मिला के 10,836 का प्रोडक्शन है, माइन प्रोडक्शन भी 4,763 का है। तो कुल मिला के इधर थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको, मैंने ज्यादा है, सरप्लस है ना सर, दोनों मिलके थोड़ा सरप्लस है। और उसका यूजेस कंपेरेटिवली थोड़ा सा लो है। मैंने मार्केट में डिमांड सप्लाई गैप में सप्लाई साइड थोड़ा ज्यादा है, डिमांड साइड थोड़ा सा कमती है। ठीक है, लेकिन डिमांड कुछ कम नहीं देखा जाए तो। डिमांड थोड़ा, अगर प्रोडक्शन और यूजेज के ऊपर देखा जाए तो यूजेज ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। और यही चीज उसका दाम को ज्यादा करने में हेल्प करता है। मैंने हमेशा इकोनॉमिक्स ये सिखाते हैं हमें कि अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो थोड़ा सा भी, तो उस चीज का दाम मिलता है। इसीलिए सोना का इतना दाम है और नमक का दाम इतना कम है। वेरी सिंपल लॉजिक। सोना का दाम इतना इसलिए है, दो रीजन है ऐसे सोना का दाम ज्यादा होने का। एक तो सोना का अपना जो कैरेक्टर है, सुंदरता। ठीक है, ऐसे गोल्ड का यूज उतना भी नहीं है जितना कॉपर का यूज इंडस्ट्रियल लेवल में। लेकिन गोल्ड का प्राइस इतना हाई क्यों है? एक तो वो कम मिलता है, दूसरा वो अट्रैक्टिव है ना। अट्रैक्टिव है, उसका सबसे ज्यादा यूज गोल्ड का क्या है? ज्वेलरीज में। गोल्ड का क्लास में मैं डिटेल्स में बताऊंगा फिर से आपको कि कैसे गोल्ड रिलेटेड मैटर को, स्टैटिस्टिक को समझना है कि गोल्ड का यूज कहाँ ज्यादा है। बेसिकली मिलता कम है, यूज ज्वेलरी बिजनेस में ज्यादा है, मैंने ज्वेलरी रिलेटेड मैटर में। तो डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो दाम रहेगा। बाकी टाइम टू टाइम कहाँ किस फैक्टर काम कर रहा है वो देखना पड़ता है। जैसे अभी करेंटली दाम बढ़ने का क्या रीजन है? स्पेशली इंडियन मार्केट का तो रीजन एकदम समझ में आ रहा है, फेस्टिवल। फेस्टिवल तो हर साल अगर आप थोड़ा दिवाली से 3-4 महीने पहले से गोल्ड खरीद के रखते हो, चांसेस ऑलवेज हाई कि आप दिवाली आते आते कुछ कमा ही लोगे आराम से। सर इस बार तो मिस कर रहे हैं, करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सीखने का टाइम है, अभी तो खेलने आए हो, आज ही विराट कोहली बन जाओगे। आज ही एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया का, कोलकाता बेस्ड है, हर्ष गोयनका, जानते हो? हर्ष गोयनका का नाम सुने हो? वही तो मेरे मन। अंबुजा का मालिक है। ये कोलकाता में जितना अंबुजा सीमेंट, अंबुजा रियल्टी, रियल एस्टेट, सिटी सेंटर 1, 2, ये सब इन्हीं का है। और भी चीजें हैं इनका। तो इन्होंने एक पोस्ट किया यूथ के लिए, बोलता है कि आप सैलरी को चेज मत करो। मैंने एक्चुअली क्या होता है, ज्यादातर केस में जब भी कोई नया बंदा जॉब मार्केट के लिए आना चाहता है या पढ़ाई करके कुछ पाना चाहता है, उनको सबसे पहला टारगेट बन जाता है पे चेक्स, कि कितना मेरे को चेक्स मिलेगा। वो उसके पीछे भाग रहा है। तो उनका सिंपल सजेशन है कि भाई चेक के पीछे मत भागो, कि कितना बड़ा चेक मिलेगा ये इसके पीछे भागोगे तो दिक्कत है। उल्टा अच्छा है कि आप अपने स्किल्स पे और ट्रेनिंग पे ज्यादा समय दो, अपना स्किल्स को डेवलप करो, नया चीज को जानो,
प्रोसेस में बने रहो, किस दिन आपको उसका फल मिलेगा आपको देखते देखते समझ में ही नहीं आएगा, मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा पैसे के पीछे भागोगे तो अल्टीमेटली वो जगह पाने में बहुत समय लगेगा। और इंडस्ट्री इतना स्मार्ट है कि किसको पेमेंट देना है और किसको पेमेंट नहीं देना है, ये इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से पता है। आप पैसा पैसा चिल्लाने से पैसा आपके आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड स्किल्स, समझे। अब मैं बोलूंगा तो आपको छोटा मोटा लगेगा, अब हर्ष गोयनका बोलेगा तो शायद अच्छा लगेगा, इसलिए उनका एग्जाम्पल यूज किया। तो सिंपल बात है सर, यहाँ पर सेम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आज के डेटा के हिसाब से दिया है। देखो आ गया प्रेस रिलीज, अभी तो देख रहा था, ये देखो मंथली वाइज दिया है। देखो 2024 के मार्च अप्रैल मई जून, जून तक का है। मेटल प्रोडक्शन देखो 1048.8, यूजेस थोड़ा ज्यादा ही है 1055.8। ठीक है, मैंने जितना प्रोडक्शन हुआ है जून में उससे ज्यादा ही थोड़ा सा डिमांड है, उसका यूजेस ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं यही जो डिमांड का डिफरेंस है ये हेल्प करता है उसका दाम को मेंटेन करने में। प्रोडक्शन 389 हुआ और यूसेज 1055 हुआ। कहाँ 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 बोल, वही बता रहे थे दूरी जैसे 389 माइन प्रोडक्शन है। माइन प्रोडक्शन माने जून में कितना टन्स माइनिंग किया गया है वो बता रहा है। माइनिंग माने रॉ हालत में जब उसको मिट्टी से अलग किया जा रहा है। नॉर्मली सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ मिट्टी, है ना। इसको हमें अलग से आइडेंटिफाई करना होता है, जहां पर उसका माइन मिल जाता है फिर वहां से हम लोग उसको फिल्टर करते हैं। नहीं तो आदत में अगर हमारे सामने रखा जाए, हम जैसे लोगों के सामने, जैसे मेरे सामने रखेगा तो मेरे को तो समझ में नहीं आएगा, मैं तो मिट्टी बोल के उसको ऐसे ही फेंक के आ जाऊंगा, है ना। ठीक है, जो जिसको आइडेंटिफाई करना आता है और उनको ना वो होता है ना, वो गंध समझ जाता है, मिट्टी देख के समझ जाएगा उस मिट्टी में क्या मिलता है। जो लोग खेती करता है, मैं आपको एक सिंपल, कोई बोलेगा कैसे समझ सकता है, एक सिंपल चीज आपको बता रहा हूँ। देखो आप लोग स्टॉक में दिमाग लगा रहे हो, ट्रेडिंग में दिमाग लगा रहे हो, तो वो लोग ना उसका कोर लेवल में काम करता है। सबका अपना अपना स्पेशलिटी होगा, आप अपने लेवल में स्पेशलिटी में जाओगे। आपको यहाँ पर माइनिंग प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझना है कि इसका डिमांड सप्लाई सिचुएशन कैसा है, यूजेज कहाँ है, आपको बस इसमें फोकस करना है। कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इतना फोकस नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ कि लोग कैसे एक्सपर्ट्स बनते हैं। कभी अगर किसी फार्मर से मिलोगे ना, फार्मर मिट्टी को ऐसे हाथ में उठाएगा, जो ओरिजिनल फार्मर है वो मिट्टी को हाथ में उठा के बोल सकता है कि उस मिट्टी में कौन सा खेती अच्छा होगा। इतना इतना नॉलेज फार्मर्स में होता है। वो देख के बता सकता है कि इसमें धान अच्छा होगा, इसमें गेहूं अच्छा होगा। हाँ, अगर उस फार्मर को नॉर्मल, अगर वो ट्रेडिशनली फार्मर है तो एक उसका एक अपना एक्सपीरियंस है वो बोलेगा। इसके साथ साथ अगर उसने थोड़ा पढ़ा लिखा किया है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वगैरह में, जिसमें उसको सॉइल का टेस्टिंग करना आता है, सॉइल का टेक्नोलॉजी आता है, तो वो उसको देख के तो और बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छा हो। एग्जैक्टली जो लोग माइनर्स होते हैं ना, वो ऐसे मिट्टी देख के बता सकते हैं कि इस मिट्टी में क्या प्रोबेबली हो सकता है। इनका अलग से पढ़ाई होता है। और कुछ लोगों को तो सर ट्रेडिशनली नस्ल होते हैं, नस्ल समझते हो, इट्स लाइक अ जेनेटिकली पापा से बच्चा को मिला है, बच्चा से उसके बच्चे, हाँ फैमिली ओरिएंटेड है, मैंने शिफ्टिंग होता रहता है। जैसे देखना कई बार देखा जाता है कि बिजनेस ब्रेन ना, पापा का बिजनेस ब्रेन था तो बच्चे का भी है। ठीक है, पापा का बिजनेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो बच्चा भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेके जन्म ले रहा है। ठीक है, ये कुछ चीजें तो जीन्स काम करता है, मैं जीन्स में बिलीव करता हूँ और हर कोई करेगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं देखना रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है लेकिन अच्छा काम करता है, कोई ना कोई हुनर है। ठीक है, जॉब मेंटेलिटी के है। ठीक है, ये जीन्स थोड़ा सा काम करता है। सर मैं बिना क्वेश्चन से माइन अगर हाँ वही मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो माइनिंग का जो ये डेटा दिया है इस मंथ का है। तो ये जो मेटल प्रोडक्शन किया जा रहा है ये थोड़ी ना इसी मंथ के चीज से किया जा रहा है, पहले जो माइनिंग होके रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले का जितना सारा जुगाड़ करके रखे हैं उससे प्रोडक्शन नहीं होता है क्या। ये देखो कहाँ क्या मिलता है, कहाँ देखो यहाँ पे दिया है। राइज इन रिफाइंड लीड मेटल यूसेज इन चाइना, इंडिया, जापान। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, आप लोग सोचते हो कि कहाँ से बोलते हैं। देखो प्रोविजनल लेटर रिपोर्टेड टू दी इंटरनेशनल लेड जिंक इंडिकेटेड वर्ल्ड रिफाइंड लेड मेटल सप्लाई एक्सीडेड डिमांड बाय 15 कैरेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024 विद टोटल रिपोर्टेड इन्वेंटरीज इंक्रीजिंग 93 केटी। ठीक है, मैंने ये केटी बेसिकली यूनिट को बता रहा है। ठीक है सर,
मैंने बेसिकली डिमांड बढ़ा है 15 केटी में और इन्वेंट्री मैंने स्टॉक बढ़ा है 93 केटी में, ठीक है। ग्लोबल लीड माइन प्रोडक्शन रोज बाय 0.6%. दिस वाज प्राइमरीली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन ऑस्ट्रेलिया, Kazakhstan, Peru, Sweden that were partially balanced by reduction in Ireland, Portugal and the United States. मैंने कहना ये चाहता है कि लेड माइन प्रोडक्शन 0.6% में बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? ऑस्ट्रेलिया में इंक्रीज हुआ है, कजाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है, पेरू में एंड स्वीडन में बढ़ा है। लेकिन डिक्रीज कहाँ हुआ है? आयरलैंड में कम हुआ है, पोर्तुगल में कम हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स में कम हुआ है। मैंने पहले कुछ जगह में माइनिंग ज्यादा हुआ था, वहां पर पहले मिलता था, लेकिन रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, कजाक और पेरू में इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल 0.6% का ग्रोथ है, ठीक है। 0.8% फॉल इन ग्लोबल लेड मेटल प्रोडक्शन, 0.8% में ग्लोबल लेड मेटल प्रोडक्शन कम हुआ है, मेनली रिजल्ट ऑफ लोअर आउटपुट इन चाइना। बार बार देखो, चाइना का आउटपुट कम होना बार बार मेन इंपैक्ट है हर चीज। अच्छा, कनाडा का भी इकोनॉमी डाउनफॉल है, ठीक है। कनाडा भी वर्ल्ड का वन ऑफ दी सुपर पावर है सर, ठीक है। तो कनाडा का डाउनफॉल भी एक बहुत इंपैक्टफुल है। तो चाइना एंड कनाडा में डाउनफॉल होना लेड मेटल प्रोडक्शन का 0.8% गिरने का मेन रीजन है। Where scheduled maintenance at Teck Resources, trail operators impacted production of second quarter. In Australia, India, Japan, and Republic of Korea, however, output was higher than in the first half of 2023. European production remained unchanged, as increase in Bulgaria and Italy were offset by declines in Germany, Poland, and Sweden. Rise in refined lead metal usage in China, India, Japan, and Republic of Korea were more than balanced by falls in Europe and United States. मैंने बेसिकली यूरोप एंड यूएस में गिरा है, बट ये सब जगह में बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ये चीज क्या हो गया? बैलेंस हुआ। ओवरऑल डिक्रीज हुआ है ग्लोबली 1.7% यूजेज, ठीक है। तो चाइनीज इंपोर्ट्स लेड कंटिन्यूड इन लीड कंसेंट्रेट डिक्रीज बाय 10%। चाइना सबसे ज्यादा करता है, वो डिक्रीज हुआ है 10% में 285 केटी में। नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ रिफाइंड लीड मेटल टोटल 140 केटी एंड डिक्लाइन 57 केटी कंपेयर्ड टू सेम पीरियड 2023। तो 23 के हिसाब से 24 में खराब हुआ है। इसका मेन रीजन बार बार चाइना ही आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जहां होगा, क्रूड ऑयल का भी डिमांड वही होगा। एक कॉमन फैक्टर है ये सब चीजें। कॉपर का डिमांड भी उसके कारण ही बढ़ता है। क्या बोलते हैं, लेड का। इंडस्ट्रियल जहां है, जहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जहां ज्यादा होगा, पूरा दुनिया। इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, चाइना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत सारा बातें हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये सब बात ना करूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर ये नहीं बोलूंगा तो आप लोगों का दिमाग खुलेगा कैसे। अदरवाइज कोर्स खत्म करने का मन करे ना, टेक्निकल चार्ट से दो बात कर दो, 4 पॉइंट तो इधर उधर से मिल जाते हैं, समझा दो, कोर्स तो मेरा खत्म हो जाएगा। इतना बात करके मैं अपना माथा व्यथा करता क्यों हूं? चाइना दुनिया में चाइना और इंडिया का इंपॉर्टेंस आज से नहीं है, वेरी हिस्टोरिकल एंशिएंट कारण है। पूरा वर्ल्ड देखो एक तरफ और भारत है चाइना एक तरफ। ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपको कॉमोडिटी का क्लास कम लगेगा और जियोपॉलिटिकल का क्लास ज्यादा लगेगा। वही तो सीखना है, ये पॉलिटिक्स ही तो नहीं, वो मेरा क्लास नहीं है। मैं सिर्फ इस पर्पस में बोलूंगा, मैं पे सिर्फ इस पर्पस में बात करूंगा जो हमें मार्केट एनालिसिस करने में हेल्प करे। बाकी जियोपॉलिटिकल मैटर में मैं ज्यादा फोकस है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। बट टॉपिक का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ भी बकता रहूं यहाँ पर, मैंने कुछ भी बने, दैट इज वो अलग बात हो जाएगा। बस इतना समझो कि चाइना इंपॉर्टेंट क्यों है रिसेंटली। चाइना का पॉपुलेशन और इंडिया का पॉपुलेशन, पूरा दुनिया में अप्रोक्स 700 करोड़ लोग रहते हैं पूरा वर्ल्ड में। उसमें से चाइना में रहते हैं सर 140 करोड़ लोग, इंडिया में रहते हैं 140 करोड़ लोग। तो 700 करोड़ में से 280 करोड़ लोग इंडिया और चाइना में ही रहता है, ठीक है। टोटल 700 करोड़ में 280 करोड़ कितना परसेंटेज होता है? हिसाब लगाओ, अप्रोक्स 35-36% हो जाए। 280 डिवाइडेड बाई 700, प्लीज डू इट। কত হচ্ছে গীতিকা? 280 কোটি ডিভাইডেড বাই 700 ইন্টু 100, ठीक है, अप्रोक्स 35-40%, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि जब पूरा दुनिया का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन यहाँ पर है, तो आज के डेट में इंडिया जो है और चाइना जो है, भले ही इंडिया का 140 करोड़ की आबादी है, भले ही चाइना का भी 140 करोड़ की आबादी है, बट एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा, इंडिया जो है ये बेसिकली अभी कंज्यूमर्स है ज्यादा, प्रोड्यूसर कम है। सुनो सुनो, इंडिया इज अ
प्रोड्यूसर में कम है, माने इंडिया बनाता कम है, यूज ज्यादा करता है दूसरे का चीज। तो बेसिकली इंडिया एक मार्केट के हिसाब से अभी दुनिया के सामने अभी भी उसका मेन कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि इंडिया एक मार्केट है जहां पर प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। चाइना क्या है? बोथ। चाइना कंज्यूमर भी है और चाइना प्रोड्यूसर भी है। मैंने चाइना खुद एक मार्केट भी है, एज वेल एज चाइना प्रोडक्ट बना के दुनिया को बेचता भी है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी स्पेशली जिनके पास पैसा है जैसे कि यूएसए, ये चाहता है चाइना, एक्चुअली चाइना को चाइना कौन बनाया? इसी ने ही बनाया। हमारे हाथ में जितने भी बड़े बड़े ब्रांडेड फोन्स होते हैं, स्पेशली अगर मैं आईफोन का ही ना, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, जो भी कंपनी है, सब कहाँ का है? यूएस का है। लेकिन इनका प्रोडक्ट बना कहाँ है? चाइना में। अगर अमेरिका चाइना को अपना एनिमी सोचता स्टार्टिंग से, तो क्या उनको ट्रेनिंग देता? আপনি যে জিওপলিটিক্যালের কথা বলছেন হ্যাঁ। সেই সময়টা কিন্তু আলাদা ছিল। এখন যে জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা কিন্তু এদের এগেইনস্টে চলে গেছে। চায়না কি করেছে, এদের টেকনোলজিটা নিয়েছে, ঠিক আছে, এরা টেকনোলজিটা নিয়ে এরা এদের এগেইনস্টে চলে গেছে। তাই জন্য স্টিভ জবস থেকে শুরু করে যে কটা বড় বড় ব্র্যান্ড আছে তারা ইন্ডিয়ায় আসতে চায়। एग्जैक्टली सर, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। बट उस पॉइंट पे आने के लिए मुझे आपको तो इतिहास एक बार बोलना चाहिए ना। चलो अच्छा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि चाइना को बनाया अमेरिका नहीं। आज का जो चाइना का ग्रोथ है, मैंने प्रिमिटिव चाइना का बात नहीं कर रहा हूँ। प्रिमिटिव चाइना मैंने आप ऐसा समझ सकते हो कि जब चाइना सिविलाइज था तो अमेरिका में लोगों को लंगोट पहनना भी नहीं आता था। जब इंडिया सिविलाइज था तब बाकी दुनिया को लंगोट पहनना भी नहीं आता था। तो मैं ये नहीं, हाँ চায়নাও কি পারতো? कि চায়নাও তো এক্সাম মতো আনতে পারে, ওরা কালচারটা শিখতে আসে। ना ना, चाइना भी पुराना है, चाइना का भी हिस्ट्री पुराना है। चाइना থেকে ইন্ডিয়া इंडिया भी पुराना है, चाइना भी माने बहुत माने यूरोप माने वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हाँ। नया नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ दैट इज ऑल्सो प्रिमिटिव। यस, इंडिया उससे भी ज्यादा प्रिमिटिव है। हिस्टोरिकल जो प्रूफ मिलता है, इंडिया सबसे पुराना है, लेकिन चाइना भी कुछ कम पुराना नहीं। तो मैं अगर ये बोलूं कि अमेरिका ही चाइना को बनाए तो ये गलत बात होगा। लेकिन रिसेंट ट्रेंड में जो 1942 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमी का सिनेरियो चेंज हुआ है, उस सिनेरियो चेंज में स्पेशली 1980s 90s के बाद से, जब से अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, तो अमेरिका को पता था कि भाई हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो उसके अंदर था ही, ठीक है, पैसा भी उसके पास था, अमेरिका अपने आप में बूम किया है। लेकिन मार्केट में प्रोडक्शन को डेवलपमेंट करने के लिए और स्किल ट्रेनिंग देने के लिए उनको बेहतर सिचुएशंस लगा चाइना, ठीक है। और चाइना का लोग अमेरिका वगैरह में पढ़ने भी जाता था। तो इस तरह से चाइना में एक ऑटोमेटिकली स्किल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे अमेरिका को ये समझ नहीं था कि चाइना एक दिन इतना माने स्टैंड कर लेगा अपने, क्योंकि क्यों कर लिया, क्योंकि उसका प्राचीन हिस्ट्री जो है वो रीच है। अगर किसी आज ये चीज अफ्रीका में करके दिखाए, नहीं कर सकता। जिसका सिविलाइजेशन का जड़ मजबूत है, उसे तुम अगर एक बार उसका पुराना चीज याद दिला दो, ठीक है, तो फिर उसको फिर से खड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये तो समय का चक्का है सर, आज नहीं तो कल घूम ही जाता है। अमेरिका को लग रहा था कि भाई चाइना में इतना आबादी है, गरीब देश है, ठीक है। मैं आज से 30-40 साल पुराना बात कर रहा हूँ, ठीक है, 50 साल पुराना बात कर रहा हूँ। तो अमेरिका को लग रहा था कि भाई यहाँ पर चीप लेबर मिलेगा, ठीक है, सस्ता में मेरा चीजें बन जाएगा। लेकिन आज उनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि वही चाइना अपने आप में इतना डेवलप हो जाएगा और उसी को आज आंख दिखाएगा, ठीक है। मैंने वो एक हिंदी सिनेमा में एक डायलॉग है कि आसमान में थूकने वालों को खुद ही नहीं पता कि पलट के थूक उसी पे गिरेगी, ठीक है। ये किसी राजनीति बोल के एक मूवी था, उसमें मनोज बाजपेयी ये डायलॉग मारता है कि भाई आसमान में थूकने वालों को खुद ही नहीं पता कि पलट के थूक उसी पे गिरेगी। तो ये सिचुएशन से भी चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका को पंगा दे रहा है, ठीक है, इकोनॉमिकल पैरामीटर्स में, और ऊपर से सस्ता में दे रहा है, सेम चीज बना रहा है। लेकिन अभी अमेरिका चाहता है कि चाइना का ये दादागिरी बंद हो। चाइना जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, ये बंद हो, और इसके लिए चाइना अभी इंडिया को सपोर्ट करना चाहता है। ये आप देख ही रहे हो कि जिस तरह से मोदी को बार बार, ठीक है, ट्रम्प के साथ तो मोदी का ऐसे ही रिलेशन अच्छा था, लेकिन बाइडेन भी मोदी को इग्नोर नहीं किया। हम लोग को थोड़ा डाउट था, उसका रीजन यही है, करेंटली अमेरिका इंडिया से थ्रेट नहीं पा रहा है,
क्योंकि इंडिया को अमेरिका को थ्रेट देने के लिए भी बहुत देरी है। वो दिन अभी आते आते और 25 साल लग सकता है। डिपेंड करता है कैसे लीडर के हाथ में हम लोग हैं और हमारा नॉर्मल लोगों का मेंटेलिटी कितना जल्दी बदलता है। जैसे ही चाइना में बदला है, ये लोग 50-60 साल में जो डेवलपमेंट करके दिखाया, क्या इंडिया इतना करेगा? क्योंकि इंडियन यूथ क्या इतना माने फोकस्ड है, क्या इतना हमारा यूथ करेंटली है, ये देखने वाला बात है। ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं उस पर बाद में बात करता हूँ। तो बेसिकली करेंटली यूएसए चाहता है कि इंडिया को सामने रख के चाइना को काउंटर अटैक करना। किस मारे में? कि सारा का सारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो बात अभी पप्पू ने उठाया कि सारे कंपनी से भी इंडिया को, माइक्रोसॉफ्ट देखो मेन फोकस इंडिया, स्टीव एप्पल का मेन फोकस इंडिया, ठीक है। तो वाई वाई सो मच इंडिया फोकस? इसका मेन रीजन है कि ये चाइना को ये करना चाहता है, ठीक है, काउंटर करना चाहता है, क्योंकि ये दादागिरी इनका बंद करना चाहता है। और इसीलिए ऑटोमेटिकली चाइना में प्रोडक्शन लेवल में एक लैग चालू हो चुका है। समझ में आ रहा है? क्योंकि पैसा, एक्सेस पैसा किसके पास? दीज आर दी एक्सेस मनी। ये एक्सेस मनी सर्कुलेट होके चाइना के पास आया था काम के रूप में। फिर वो चीज यहां पर बन के दुनिया भर में मार्केट को, जैसे इंडियन मार्केट, ठीक है, अफ्रीकन मार्केट, साउथ अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, हर मार्केट में चीजें गया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अब चाइना मार्केट को अमेरिका कंसंट्रेट नहीं करने देना चाहता। अच्छा, ये अमेरिकन मेंटेलिटी और इनका मेंटेलिटी सेम है, ऑलमोस्ट दे आर कनेक्टेड। ये दुनिया का रिच कंट्रीज है, दे आर इन सेम लाइन, सेम थिंकिंग प्रोसेस। एक्चुअली क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो मेन लोग है ना, वो यही के हैं। ये फ्रांस के लोग, स्पेन के लोग, पुर्तगाल के लोग, ठीक है, और कुछ ब्रिटिश लोग, यही लोग एक्चुअली अमेरिका का मेन बनाया। तो इनका थिंकिंग प्रोसेस एंसेस्ट्रल कनेक्शन से थे, ये तो बनना ही है। और जो अमेरिका का पुराना लोग हैं, जिनको नॉर्मली वो लोग रेड इंडियंस कहते हैं, ठीक है, वो वहां का ट्राइबल्स है। कुछ लोग यहाँ पर ये वेस्ट इंडीज साइड में रहते हैं और कुछ लोग पुराना रहते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है, ठीक है, वो लोग अलग चीज है। तो मेन जो अमेरिका को कंट्रोल करता है, वो एक्चुअली एंसेस्टर्स ऑफ दीज यूरोपियंस। तो इनका मेंटेलिटी तो मैच करेगा ही करेगा। अब इस पूरा खेल में अब यही देखना है कि इंडिया में तो बूम आना ही है, इंडिया में तो बूम आना ही है। अब इंडिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका, ये साउथ चाइना सी है ना सर, ये साउथ चाइना सी में चाइना का कंट्रोल कम करना चाहता है। ऐसे तो कंट्रोल कम नहीं कर सकता। बेसिकली ये जो कंट्रीज है ना, चाइना को भी बहुत दिक्कत है अपना सामान इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए। उसके पास ना ये एकमात्र एरिया है सर। इस तरह से वो इस तरह से हो जाता है। अब तुम ना बहुत, अब कोई बोलेगा सर इतना बड़ा समुद्र है कहीं से भी जाए, अरे भाई तुम महासमुद्र पे फंसना है क्या? और इतना फ्यूल थोड़ी होता है। जहां जहां इतना ही दिन है, जहां जहां आपको लैंड मस मिलेगा, कंट्री मिलेगा, उसी के आसपास में से एक जहाज जाएगा, क्योंकि जरूरत पड़ने में खाना पानी, ठीक है, बेसिक नीड्स कोई कंट्री तुम्हें दे सकता है, ठीक है। अब चाइना हमें ऊपर से कितना भी झमेला करे, जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ पंगा करके झमेला कर रहा है, ठीक है, अमेरिका भारत को पूरा सपोर्ट कर रहा है कि भाई चाइना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम तुम्हें एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दे रहे हैं। वो ऐसा है कि ये जो चाइना अपना जहाज को मलेशिया वगैरह के थ्रू से निकलते हैं ना, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये थाईलैंड के पास से यहाँ पर से ना एक क्रीक है, इस क्रीक से निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये सिंगापुर के यहाँ से निकल के ये होके जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के टाइम पे ना, ये हमारे भारत के आसपास से ही जाएगा। ये हमारा निकोबार आइलैंड है, ठीक है। वो ये एक्सेस अभी हम लोग देते हैं, लेकिन अगर चाइना हमें लैंड में दिक्कत करेगा तो ये एक्सेस हम लोग नहीं देंगे। और ये एक्सेस में पावर देने के लिए नेवी, नावल पावर होना चाहिए, ठीक है, नेवी का पावर। আন্দামান নিকোবর থেকে, এটা তো নিকোবর আইল্যান্ড, এখানে লাস্ট এটার নাম হচ্ছে ইন্দিরা পয়েন্ট। হ্যাঁ, ওখান থেকে মানে ল্যান্ড মাস থেকে 200 নটিক্যাল মাইলস অতটা আমাদের, মানে সমুদ্রের উপরে 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, ठीक है। तो भारत का करंट काउंटर अटैक इधर है, ठीक है। मैं एक्चुअली पूरा अलग जगह में चला गया, मुझे इतना नहीं जाना चाहिए, बट कहने का मतलब है कि चाइना
को ये अटैक करने के लिए, चाइना का जो इधर हमारे अरुणाचल में दिक्कत करता है, लद्दाख में दिक्कत करता है, पाकिस्तान को मदद करता है, उनको अगर अमेरिका हमारा साथ रहे, ठीक है, तो फिर हम उनको नेवी में पूरा सपोर्ट हमें मिल जाएगा। अगर अमेरिका एक जहाज इंडिया के हेल्प करके इधर गाड़ देता है, चाइना का नेवी हमसे स्ट्रांग है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अमेरिका और इंडिया मिलके चाइना को गार्ड कर देता है, अगर वो बदमाशी करेगा तो उसका बदमाशी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, चलेगा कैसे? तो ये सब चीजें ट्रिगर कर रहा है सर। लेकिन इंडिया भी ना अमेरिका को पूरा पूरी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ऑलवेज इंडिया के साथ दगा ही किया है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया अभी ना ज्यादा किसी के साथ दोस्ती नहीं करता है। वो चाहे तो कर ही सकता है, अपने आप को गरीब दिखा के, हाँ हाँ अमेरिका आप मेरे साथ जुड़ जाओ, बट नहीं, स्टैंड पॉइंट। इसलिए रशिया के साथ अमेरिका हमें नहीं चाहते कि हम दोस्ती करें, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अलग पॉइंट है सर, ये अलग सिचुएशन है हमारे देश का, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया अपने स्टैंड पॉइंट में रहे, अमेरिका ऑटोमेटिकली इंडिया को ही फोकस करेगा, इंडियन डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल सिचुएशंस जो भी चीजें, जैसे अभी हर कमोडिटी का तुम देख रहे हो कि डिमांड सिचुएशंस खराब जा रहा है, ठीक है। रीजन बीइंग चाइना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि चाइना थम जाएगा, जो स्किल इतना दिन से गेन किया है, तुम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। वर्ल्ड इकोनॉमी का डिमांड सप्लाई पूरा ठप हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मोनोपोली चाइना इतना दिन से लिया है, वो मोनोपोली धीरे धीरे कम होगा और उस मोनोपोली में डुओपोली आ जाएगा। अब इंडिया चाइना मिल के करेगा और ये कमोडिटी मार्केट के लिए एक बेहतर सिचुएशन बनेगा। समझ में आ रहा है सर? हाँ। ठीक है। तो अभी ये सब बहुत बातें हैं, ये सब बात करना स्टार्ट करो ना तो लेवल ही अलग हो जाएगा। लेकिन मैं जस्ट आपको इतना ही समझाने का कोशिश कर रहा था कि क्यों हर चीज में। अच्छा, लेड का और निकल का सिचुएशन थोड़ा देख लेते हैं। एक गीतिका एंड सुमित, बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? है सर। टेक्निकली थोड़ा सा लेट का सिचुएशन देखो। लेट सर लास्ट दिन तो पूरा गिरा है सर, 183 से पूरा 181। इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में लास्ट दिन दिखाया था आप लोगों को हाँ, कि कितना मोटा मोटी 5,000 का था ना, एक टिक में कितना था? हाँ, हाँ, 5,000, ठीक है। लेट का मिनी वर्जन है ना? हाँ। हाँ है तो কি বলছো? লেডে দুটো হয়, লেড আর লেড মিনি। দেখালাম আগের দিনকে, অরিজিনাল লেডের দাম বেশি হয় বলে অনেক সময় আমরা মিনিতে করতে, ऑप्शन नहीं है। मेन नहीं, एक सेकंड रुको मैं बोल देता हूँ आपको। लेट 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 लेट, ये रहा प्रोडक्ट, यस, लेड एंड लेड मिनी, ठीक है। अच्छा, मेन लेड जो है सर, उसका आपको यहाँ पर आप चेक कर लो ब्रोकरेज में, ऑप्शंस पे जाओगे तो क्या आपको यहाँ पर लेड दिखेगा? क्रूड क्रूड गोल्ड 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 सिल्वर, नहीं, इसका ऑप्शंस नहीं है। लेड में अगर करना है तो फ्यूचर ही करना पड़ेगा, लेकिन जिंक का है सर ऑप्शन, ठीक है, जिंक का ऑप्शन है। लेड का तो लास्ट दिन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में आपको बता दिया, ठीक है। आज मैं आपको लेड का ये भी बता दिया कि कहाँ से आप इसको डिमांड सप्लाई को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। डिमांड सप्लाई को कहाँ से ट्रैक कर सकते हो, तो बेसिकली सिंपल कहाँ कॉन्सेप्ट है सर। जब भी आप डिमांड सप्लाई सिचुएशंस में देखोगे कि आपको डिमांड ग्रोथ होने को दिख रहा है, तो आप समझ लेना कि उसका दाम बढ़ने वाला है। और वहां पर तो आपको मंथली डेटा ट्रैकिंग मिलता है, तो प्लीज उसको देखते रहो और दिमाग में बिठाते रहो कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है। बात समझ में आया? हाँ, लेट में क्या क्या करना है समझ में आ गया सर? हम्म, কি বলো? লেট খুলে যাবে। কি চার্ট? হুম। হ্যাঁ খুলেছি, বলো। তারপরে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু লেট মিনি যদি কেনা যায় সস্তা আছে 16,308, 16,309 বলে 16,121 হয়ে যাবে। लेट मिनी লেট মিনি 4টা কমে सितंबर ना अक्टूबर? अक्टूबर, সেপ্টেম্বর না নেই, অক্টোবর अक्टूबर। 35। लेट मिनी তাই তো? তো স্লো কাজ করছে কেন?
देखो ये ना पूरा रेंज बाउंड सिचुएशन है पूरा लेड में, ये आवरली चार्ट है। लेड मिनी पे पूरा एकदम रेंज बाउंड सिचुएशन है, टॉप बना रहा है ना, डबल टॉप बना रहा है, ये देखो डबल बना है। ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, ओवरऑल सिचुएशन अगर देखा जाए एक पॉजिटिव सिचुएशन के साथ है। এখানে যা অপশন নেই স্যার, এখানে খালি ফিউচার আছে, এখানে তো স্যার 5-6 পয়েন্ট প্লিজ হবে একদম। হ্যাঁ 5-6 পয়েন্টে বিশাল ব্যাপার তো, দেখিয়েছিলাম তো আগে। এক পয়েন্ট, এক পয়েন্টে দেখিয়ে দিচ্ছি দাদা কত लेड मिनी তাই তো, लेड मिनी কত চলছে, লেট মিশন মানে 500 টাকা। 184 তাই তো, 184। अब देखो यहाँ पर एक पूरा लगातार डाउनफॉल, टेक्निकल क्या बता रहा है, लगातार डाउनफॉल है। इसमें अगर तुम नेक्स्ट दिन जब मार्केट खुलेगा सोमवार को, अगर मानो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल अगर बनाता है, लाइक अगर छोटा सा कोई हरामी क्रिएट कर लेता है या फिर अगर कोई इंगल्फिंग क्रिएट कर लेता है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि ये रेंज बाउंड है अभी, ठीक है, साइडवेज सिचुएशंस एंड रेंज बाउंड सिचुएशंस। अगर मानो ये 1 रुपया का भी पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, तो इन दैट केस 184, और ये तुम अगर 185 में सेल करते हो, क्वांटिटी एक ही लॉट रखो आप, 918 टाका का प्रॉफिट आता है आपका। इसका पर इसमें 1000 टाका है लेड मिनी का, बड़ा में 5000 है। बड़ा में मत करना, बहुत हाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, बहुत हाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, छोटा में ही करना अभी, ठीक है। छोटा का 16,000 और बड़ा का 1 लाख समथिंग, ठीक है, तो छोटा में करना, ठीक है। अभी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के थ्रू से ही देखो, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी देखो मंथली डेटा कहाँ से चेक करना है मैं बता दिया सर, ठीक है, यहाँ पर बस उसी चीज को लिखा है, ठीक है। और एक चीज देखना सर, जब भी आप टेक्निकल में दिखाता रहता हूँ ना, वो बीड आस्क, मार्केट खुलते ही अगर आप देखोगे कि बीडिंग साइड हाई है और आस्क साइड कम है, तो आप समझ लेना कि वहां पर एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों में मॉर्निंग के क्लास में भी दिखाता रहता हूँ। यहाँ पर जब मार्केट डेप्थ होता है ना सर, ये वाला, ठीक है, ये मार्केट डेप्थ इसमें खोल लेना जब लाइव रहता है, इसमें आपको टोटल बीड और टोटल आस्क पूछता है। ये बीड अगर थोड़ा ज्यादा हो, अभी तो मार्केट ऑफ है तो नहीं दिखाएगा ना सर, तो ये बीड अगर हायर साइड में है और आस्क अगर थोड़ा कमती साइड में है, तो आप समझ लेना, या फिर मोटा मोटी भी कमती है, तो इस पॉइंट में आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। बीट 45%, आप 55%। लास्ट दिन का बीट 45 था और आस्क 55 था, मैंने सेल ज्यादा हुआ था, मैंने सेलर साइड ज्यादा था, इसीलिए तो गिरा था, इसीलिए तो गिरा था। देखा, काम करता है, बड़ा काम करता है, मार्केट डेप्थ बहुत अच्छा काम करता है, लाइव सिचुएशंस में बहुत अच्छा काम करता है। ऑलवेज ट्रेड तब लो सिंपल मार्केट डेप्थ देखते हुए कि जब आप देखोगे कि आपका बिड साइड हायर है, उसी टाइम पे आप एंट्री लो। अगर और कैंडल साथ में आपको हेल्प कर दिया तो, कैंडल एंड बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स जो जो यूज करना सीखे हो, और साथ में मार्केट डेप्थ में जब आप देखोगे बीडिंग हाई है, मैंने बायर साइड ज्यादा है और सेलर साइड कम है, तभी मोमेंटम मिलेगा। और जब तक देखोगे कि आपका बायर साइड कमती है और सेलर साइड ज्यादा है, भले ही कैंडल हल्का हल्का मूव दे रहा है, ठीक है, फिर भी तुम्हारा प्रीमियम में ग्रोथ नहीं मिलेगा। 50-50 पोजिशंस में भी तुम ये ट्रिगर देखो कि तुम जब किसी में बाई पोजिशंस के लिए आ रहे हो, ऑब्वियसली तुम बाइंग के लिए क्यों आ रहे हो, क्योंकि तुम मोमेंटम चेंज होने का सिचुएशंस देख रहे हो, है ना। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम चेंज होने का सिचुएशंस नहीं है तो मत जाओ, तब ये हो सकता है कि वो फॉल्स ट्रिगर दे रहा है। एक देखो सर, मार्केट में रहते रहते इतना एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना कि कौन से सिचुएशंस में ट्रिगर देता है, कौन से स्ट्राइक पॉइंट में देता है, ठीक है, और कब मार्केट चेंज हो सकता है। अगर समझ में कम आता है मत किया कर, लेकिन जिस दिन जिस पर्टिकुलर मोमेंट में समझ में आता है कि भाई यहाँ पर तो मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा इसमें मोमेंटम, এখানে লেখা আছে টোটাল বাইং কোয়ান্টিটি 45%, বাট একটা লেখা আছে 132, আর এখানে লেখা আছে মানে কতজন কন্ট্রাক্টে বাইয়ের জন্য এসেছিল ওই নাম্বারটা দেখা, স্যার এটাও তো ইয়ে করেছে, এটাও তো হ্যাঁ অবভিয়াসলি ওই ওই পার্সেন্টেজটা ওই নাম্বারটা থেকেই পাওয়া যায়। এখানে পার্সেন্টেজ দেখায় না তো, যখন মার্কেট ওপেন থাকে এখানে নাম্বার দেখায় কতজন এই কন্ট্রাক্ট নিল, মানে কতগুলো কন্ট্রাক্ট নিল और কতগুলো কন্ট্রাক্ট সেল করলো, ওটাই ওই ডেপ দেখে নিতা। डेफ जरूर देखना सर चेक करने के टाइम पे, ठीक है। साथ में कैंडल चेक करना, यहाँ पर MACD वगैरह लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़ा स्लो काम करेगा क्योंकि ये इक्विटी मार्केट की तरह इतना लिक्विड नहीं है, ठीक है। लेकिन सर
मार्केट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका ना ओरिजिनल मार्केट है, আর সবচেয়ে বড় কথা আমার কোম্পানি ভালো স্টেবল। काफी स्टेबल है, आपका माने बन जाएगा, चीजें बन जाएगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन बहुत अच्छा बना रहा है, बस नेक्स्ट दिन ख्याल करो कि ये रेंज बाउंड होके 184, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ना एक माने जोर से जो अगर गिरता भी है ना 184 तक आ सकता है, माने यहाँ तक आ सकता है, पूरा सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ से ग्रीन कैंडल अगर बने ना तो सीधा सीधा ये फिर से 186 तक वापस एक बार जाएगा। ये लास्ट दिन का क्लोजिंग অবস্থা নিয়ে গেছে 45 55 যে কোনো মধ্যে নিয়ে গেছে। ये चेंज है, पॉजिटिव साइड में नेक्स्ट दिन ओपन होने का चांसेस है क्योंकि ये पूरा रेंज बाउंड है, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिविटी है, मैंने एक बार उठेगा एक बार गिरेगा, बस आप टेक्निकल चीजें देखते हुए मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? না আপনি এই বিদেশ থেকে যে নিকেলটা বললেন স্যার, নিকেল যেটা আছে সেটা কি ঠিক আছে? निकल ওর মধ্যে কি নিকেলটা আছে? কোনটা দাও বলছি, एमसीएक्स कहाँ गया रे? স্যার একবার এনজিএ তে বিটমার্কটা দেখুন। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ये एमसीएक्स का हिट मैप है, इसमें कौन सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, नेगेटिव क्लोज हुआ है। ये देखो गोल्ड, सिल्वर अभी तक ग्रीन जोन में है, क्रूड ऑयल, ठीक है, नेचुरल गैस का सुपर डुपर हिट है सर, देख रहे हो, कॉपर, जिंक, कॉटन कैंडी, सिर्फ लेड जो है वो लाल जोन में है। दीज आर कॉल्ड बेस मेटल। इसमें और थोड़ा सा क्लिक करोगे अलग अलग करके भी दिखेगा, ठीक है, अलग अलग करके भी दिखेगा। अच्छा, इसमें निकेल क्यों नहीं दिखा रहे? স্যার নিকেলটা দেখা আছে। निकेल की ट्रेड बंद कर दिया, निकेल का ट्रेड है बंद कर दिया क्या? ये देख लास्ट दिन लेट किस तरह से गिरा है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी तुम लोग चेक कर सकते हो। স্যার নিকেল মানে একটা ট্রেড করা যায় না। निकेल तो দেখাচ্ছে না, দেখছি দাঁড়া, দেখাচ্ছে তো, তাহলে এখানে কেন দেখাচ্ছে না? ওইখানে তো এনসিএক্স চার্টই নেই তো, মনে হচ্ছে এটাতে ট্রেড বন্ধ আছে, মনে হচ্ছে নিকেলে বন্ধ আছে। নিকেল সিএক্স আই থিঙ্ক অফ है। বন্ধ আছে স্যার। এরকম স্যার রিয়ে দিয়ে দিয়েছি। কি দিয়েছে বলো তো? ওইটা রিয়ে বন্ধ থাকলে এটা দেয় না স্যার। কি কোথায় দেখাচ্ছে বলো আমাকে? এই তো স্যার বাঁ দিকে কি দেখাচ্ছে? এটা এটা হ্যাঁ এই নিচে যে সাইনটা আছে স্যার, নিচে লেখাটা ওই ফিটার অপশনে আমরা বলতে এটা হ্যাঁ এটা কন্ট্রাক্ট স্পেসিফিকেশনটা দেখাচ্ছে, ফিউচার এন্ড অপशंस। ठीक है, मैं इसका अपडेट लेके आपको बताता हूँ निकेल का करंट सिचुएशंस क्या है। নিকেল কি ইউজ निकेल एक रकमेर মেটাল, ধাতু, সবই মেটাল, এগুলো সব ধাতু। কমোডিটি মার্কেট মানে দুটো জিনিস হয় এখানে, একটা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমোডিটি আর একটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল কমোডিটি, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এখন निकेल নিয়ে আমি আর বেশি ডিসকাস করছি না কারণ निकेल এর বেশি डिटेल्स नहीं, ठीक है। अब डिटेल्स नहीं है, फिर लिक्विडिटी इशू हो जाएगा। ये था लेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना था, मैं कर दिया। नेक्स्ट क्लास में आपको ना एग्रीकल्चरल कमोडिटी के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद हाँ এগ্রিকালচার শেয়ারটা আওয়াজ কি E6 আওয়াজ দিয়ে ইনফ্লার শেয়ার আছে না হ্যাঁ, ওটা তো এগ্রিকালচারাল শেয়ারস ওটা, ঠিক আছে। আমি বলতে চাইছি যেমন ধরো कॉटन, क्रूड पाम, कपास, मेंथा ऑयल, ऐसे कुछ चीजें हैं, मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आइडिया देके ताकि मैं वापस बेस मेटल में आ सकूं उसका मैं कोशिश करूंगा। স্যার মনে বন্ধ আছে নিকেল তো নিকেল আমাকেও লাগছে বন্ধ আছে, কিছু তো একটা প্রবলেম আছে, নাহলে দেখাবে না কেন? কোনো চার্ট নেই, কিছু নেই, কিছু তো দেখাবে, ঠিক আছে। ठीक है, अच्छा जिंक पे थोड़ा सा बात कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि जिंक क्या है, कैसे इसका यूज है, नहीं है। ऐसे जिंक का भी आपको मैं डेटा तो दिखा दिया, ठीक है। बाकी बस जिंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स नॉलेज थोड़ा सा ले लेने से अच्छा है। 10টা जिंक इज द फोर्थ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन द वर्ल्ड आफ्टर स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है, लेड से भी ज्यादा वाइटल है। It's hard and bright at most temperature but becomes malleable between 100 degree centigrade and 150. It is a fair conductor of heat, माने
बहुत इजीली हीट जनरेट करता है, यही है ना मतलब, क्या रे साइंस वाले। अच्छा, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही इजीली कंडक्ट करता है, एंड बर्न्स विद ए ब्राइट ब्लूइश ग्रीन फ्लेम। ब्लूइश ग्रीन फ्लेम में ये बेसिकली जलता है, गिविंग ऑफ जिंक ऑक्साइड फ्यूम्स। जिंक ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलता है, एंड इज 24th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अबंडेंट माने जो चीज बहुत मात्रा में मिलता है उसे अबंडेंट बोलते हैं, ठीक है। माने हम ये बोल सकते हैं कि जिंक अवेलेबल है 24th मोस्ट, माने जितना भी टोटल चीजें हैं उसमें जो चीज जितना ज्यादा मिलता है उसे अबंडेंट बोला जाता है। जिसका अबंडेंसी कम हो जाएगा, अगर अबंडेंसी कम हो जाएगा तो डिमांड सप्लाई हो जाएगा, जैसे गोल्ड, ठीक है, उसका अबंडेंस कम थी है, ठीक है, लेकिन यूजेज बहुत है इसलिए गोल्ड का प्राइस हाई हो जाता है और डिमांड सप्लाई सिचुएशन वैसा होता है। लेकिन इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, गोल्ड से भी ज्यादा। अच्छा, with about 1.5 billion tons of identified resources, 1.9 billion tons, it is an essential trace element and necessary of for plants, animals and microorganisms। ये जो जिंक है ये बहुत ही नेसेसरी होता है खेती में, प्लांट्स में, एनिमल्स के लिए, उसके खाने में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। However, high levels of zinc exposure through inhalation, ingestion and thermal contact could cause adverse health effect। माने एक नॉर्मल मात्रा में दिया जाए तो इट्स ओके, बट ज्यादा मात्रा में दे देने से फिर गंडगोल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि प्लांटेशंस में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जिंक का यूज हाई है। मेडिकल सेक्टर में भी सर वैसे जिंक से लेता है डॉक्टर। हाँ हाँ हाँ, जिंक ऑक्साइड का यूज होता है ना सर, हम लोगों को भी दिया जाता है फेरिक ऑक्साइड विद जिंक। जिंक, ये এখানে বলেছিল না এই যে কোথায় গেল, এই যে जिंक ऑक्साइड फ्यूम्स हम लोगों को भी दिया जाता है। वैसा ही ज्यादा सोइए डॉक्टर को ये जो एनिमल हस्बेंड्री कॉन्सेप्ट है, मैंने बेसिकली आपको मैं बता दूं, एनिमल्स का ये जो एक बिजनेस है ना, जैसे मार्केट में चिकन का कितना बिकता है, चिकन कितना बिकता है, मटन कितना बिकता है, इसका एक अलग लेवल ऑफ बिजनेस है। और इसका ना अलग से दवाई बनता है, ठीक है, बेसिकली जिसको हम लोग बोला जाता है कि इसको बोलते हैं कि एनिमल फूड्स, ठीक है, या फिर इसका एक दूसरा एक नाम है, रुको मैं बोलता हूँ। अ, ये एक अलग ही लेवल का चलता है, मैंने जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता, मैंने बेसिकली हिडन बिजनेस है, गांव में ज्यादा होता है। लोगों को लगता है कि ये कहाँ से इतना इनकम हो रहा है। भाई हम लोग जो बिरयानी खाते हैं, और बिरयानी बनाने वाले के लिए तो वो बिरयानी के चिकन सप्लाई के लिए तो एक बहुत बड़ा फार्मिंग वगैरह होता है ना, उनका जो मेडिकल सप्लायर्स, उनका जो फूड सप्लीमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें गोदरेज एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। अवंती सीड्स जैसे तुमने बोला वो प्लांट्स वगैरह में यूज होता है, उसका जो सार वगैरह बनाया जाता है जो, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है, আর দিয়ে কোনগুলো এই জিনিসগুলোই খায়। ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ यूज ऑफ जिंक, और हमारे मेडिसिन में भी यूज होता है। ड्यू टू इज रेजिस्टेंस टू नॉन एसिडिक एटमॉस्फेरिक कोरोशंस, जिंक प्लेज ए वाइटल रोल इन एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, शिप्स एंड सो ऑन। अच्छा, बिल्डिंग्स में भी यूज किया जाता है, व्हीकल्स में भी, शिप्स में भी, ठीक है। द मेटल इज मेनली यूज्ड एज ए एंटी कोरोशन एजेंट, एंड कोट ऑफ जिंक प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील, माने स्टील में कोट किया जाता है। ये जो कोड लो ना, बोतल पड़ा आवाज, ঠিক আছে দেখছি। It also finds its use in automobile battery, petroleum, paint, fungicide, rubber, chemical industry. A few among the many industrial uses it being put today. Stakeholders of zinc market consisting among others producers, exporters, marketers, processors। माने कौन कौन इसका माने स्टेकहोल्डर्स है, माने किसे जिंक चाहिए होता है, प्रोड्यूसर्स का इस पे कनेक्शन है, माने किसको किसको जिंक का दाम बढ़ा कमा में, माने क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगर होता है कि भाई बढ़ने से दिक्कत है या कम होने से दिक्कत है या फिर क्या है। प्रोड्यूसर्स को दिक्कत है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको दिक्कत है, जो इसको मार्केटिंग के काम करते हैं उनको है, प्रोसेसिंग में जो काम करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। एंड यूज मॉडर्न रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक एंड स्ट्रेटेजीज इंक्लूडिंग मार्केट बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक जिंक फ्यूचर्स एंड ऑफर्ड ऑन द एमसीएक्स प्लेटफॉर्म टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कंसोलिडेट कॉम्पिटिटिवनेस। माने अगर जिंक का दाम बढ़ जाता है तो ये लोग शॉर्ट कर लेता है। माने कॉन्सेप्ट इज लाइक कि मानो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जिंक का, ठीक है, मैंने इंडियन मार्केट में कुछ मानो जिंक का एक्सपोर्टर्स है। अब जिंक का एक्सपोर्टर्स जब जिंक को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जाएगा तो ऑब्वियसली डॉलर के रेट में बेचेगा, और जो भी जिंक का दाम चल रहा है उसमें बेचेगा।
अब मानो जिस रेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, से फॉर एग्जांपल जिंक का जो रेट है उस रेट में जितना क्वांटिटी क्विंटल्स टन्स में जितना भी है तुम बेच रहे हो। अब जिस दिन तुम्हारा जहाज कोलकाता से निकला या बॉम्बे पोर्ट से छोड़ा या गुजरात पोर्ट से छोड़ा, 1 महीने बाद वो चीज पहुंचेगा या 15 दिन बाद पहुंचेगा, लेकिन इन द मीन टाइम 15 डेज में जिंक रेट में काफी सारा चेंजेस आ गया ड्यू टू एनी डिमांड सप्लाई सिचुएशंस। अब इसका मतलब है कि तुमको एक्सपोजर है, एक्सपोजर माने तुम एक्सपोज हो चुके हो, माने तुम ऑलरेडी डील कर चुके हो। अब हो सकता है कि जिंक का दाम गिर जाए। अब जिंक का दाम गिर जाएगा, तुम्हारा जो कंसाइनमेंट है वो जब कस्टमर के घर पे पहुंचेगा उस दिन में जो रेट है उसी दाम पे पे करेगा, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पहले से डिसाइड किया हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुमको लॉस हो सकता है, तो तुम एक काम करो ना, अगर तुमको खबर मिल ही गया है तो शॉर्टिंग कर दो कि दाम अगर फ्यूचर में गिर गया है, ठीक है, तो तुम्हारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तुमको लॉस हो सकता है। अब उस लॉस को बचाने के लिए तुम फ्यूचर मार्केट में क्या करोगे, जितने का तुम्हारा वैल्यूएशन है अप्रोक्स उतना वैल्यूएशन का यहाँ पर शॉर्टिंग करो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मार्केट गिरने पे शॉर्ट करने से जितना वैल्यू में वो उसका दाम गिरेगा उतना वैल्यू का गेन मेरे को आ जाएगा। इसमें क्या होगा, जो प्रोबेबल लॉस तुम्हारा हो सकता था उस लॉस को तुम कवर कर सकते हो। बुझते पारले? एक्चुअल में ये जो मार्केट में हम आप जैसे लोग ट्रेड करते हैं, हम आप लोगों को ट्रेड करने का कोई इजाजत होना ही नहीं चाहिए। ये तो हम लोगों का खुशकिस्मती है कि हम लोगों को करने देता है। बेसिकली ट्रेडिंग इज फॉर दिस दोज पर्संस कि जिनका एक्सपोजर से वही लोग मार्केट में रहे। लेकिन क्योंकि अभी मार्केट के बारे में लोगों को नॉलेज बढ़ा है, गवर्नमेंट भी चाहता है कि धीरे धीरे लोग आए, इस मार्केट का एक लिक्विडिटी क्रिएट करें। लेकिन कई बार क्या हो रहा है ना, जल्दबाजी में लोग आ रहे हैं, इतना ज्यादा स्पेकुलेशन कर रहा है और पैसा गवा रहा है, तो गवर्नमेंट फिर उसमें सोचने पे बाध्य हो जाते हैं। এটার জন্য তো কি হচ্ছে না, ये বারবার ভয় দেখাচ্ছে না ইকুইটিতে বাড়িয়ে দেবো, ভয় দেখাচ্ছে কি দেখাচ্ছে না, क्यों? क्योंकि अरे भाई 80-90% लोग, उनका सारा का सारा पैसा वो 10% लोग खा रहे हैं बैठ के, बिना ट्रेनिंग का क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं समझना चाहते, क्यों नहीं सीखना चाहता है? क्या दिक्कत हो जाएगा अगर किसी को 10,000 20,000 50,000 टका कोर्स फीस के नाम पे कहीं पर भी अगर तुमको सीखने का मौका मिले, क्यों नहीं सीखता है? सर लोग लॉटरी ले नहीं सबको क्या चाहिए, शॉर्टकट में कुछ बता दो, हमें बस पैसा चाहिए, तुम बस इतना बताओ। मैक्सिमम लोगों का मेंटेलिटी कैसा है जानते हो, सर बस इतना बता दो ना कल जिंक का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमें ये सब सीख के कोई फायदा नहीं। अरे भाई मैं बोल दिया कि कल जिंक का दाम बढ़ेगा, तुमको क्या पता कि मेरा कोई ब्रोकिंग फर्म के साथ कनेक्शन है कि नहीं है। अब तुम जाके 10 लाख 5 लाख डाल दिए, कल दाम गिर गया 1,000 टका करके 10,000 टका करके तुम्हारा लॉस हुआ। मेरा को तो मेरा ब्रोकिंग फर्म, और नॉर्मली अगर तुम मेरे बातों पे करोगे तो मैं तुमको बोलूंगा मेरा जहां पर ब्रोकिंग सेट है वहां पर तुम अकाउंट खोलो, तब बोलूंगा। मार्केट में ऐसा ही चेंज ज्यादा चल रहा है सर। मेरे जैसे लोग कितना मिलेगा तुमको, जो सिर्फ एक बेसिक नॉमिनल फीस लेके पढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग सेटिंग करके ही काम करते हैं और लोग भी दौड़े दौड़े उधर ही जाते हैं, लेकिन मेरे को पता है एक दिन ये सभी जो झंझट है, इस झंझट से लोग बाहर निकलेगा। অনেক টাকা নাই স্যার ওটা মতো ভালো लोग पूरा सेट करके चलते हैं, पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप है, ब्रोकर फार्म, ट्रेडर, बंदा। वो ट्रेनिंग पे कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो तो बस 4 चीज आके बताते हैं और अल्टीमेटली लोगों को सीखने का रुचि नहीं है। जैसे हम आप लोगों को जबरदस्ती सुनाते हैं, लेकिन आप लोग समय दे रहे हो, मेरा बात मान रहे हो, तो धीरे धीरे आप लोग अपना डेवलपमेंट देख पा रहे हो कि हाँ भाई जो सर बोलते हैं वो हो भी रहा है, और सबसे बड़ा बात खुद का थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आ रहा है। और यही तो चाहिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये एंटायर मार्केट के लिए जरूरी है कि मार्केट में एटलीस्ट 60-70% लोग एडुकेटेड हो, नॉलेजेबल रहे, তাহলে স্যার স্ট্রং ইকোনমি হবে तो जाके मार्केट भी बना रहेगा। थोड़ा बातों में लाखों का या करोड़ों का लॉस भी नहीं होगा, और थोड़ा सा बातों में मार्केट में बहुत ज्यादा गेन भी এটা देगा। হওয়ার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে আমি একটা কেউ কিছু বললেই কি বলে বলতে লোক যে আগে এই নিয়ে বলো প্রোডাক্ট ম্যানেজার নিয়ে বলবো কি জানো আপনার ভাটি কেউ না যে এই যে কি ব্যাংক ইয়ে হয়ে যাবে লোকের নাম ভুলে যাচ্ছে আপনি বলেন কোনো এজেন্সি পড়বে না নামটা ভুলে যাচ্ছি যা শর্ট টার্ম ট্রেডিং ফার্ম আছে হ্যাঁ যার আমেরিকায় শর্ট টার্ম ট্রেডিং ফার্ম আছে হিন্ডেনবার্গ হিন্ডেনবার্গ ওরা কি বলেছিল,
ওরা বলেছিল যে আদানিতে একটা খুব বড় প্ল্যান আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিল, হ্যাঁ আমি তো বলেছিলাম কিছু হবে না, বললাম না আমি তোমাদেরকে ক্লাসে কি হিন্ডেনবার্গ যতই চাচাক আর কিচ্ছু হবে না, কিছু হয়েছিল, না উল্টে বেড়েছিল, এখন তো ইন্ডিয়ান ব্যাংক ইম্পোর্টার ম্যানেজমেন্ট। পুরো কিচ্ছু লাভ নেই। ও এখন অনেক কিছু করবে, বুঝে গেছে, एक बेटर है दूसरा বুঝে গেছে, পাবলিক বুঝে গেছে, কিন্তু আমি তো প্রথম থেকে বলে আসছি। তুমি আমার 2022 সালের আমি জানি। ভিডিও খোলো, আমি ওখানেও বলেছি যখন যেদিনকে আদানি পুরো একদম পড়ে একদম লাল হয়ে গেছিল, যারা ওই সময় ক্লাসে ছিল সুমিতকে জিজ্ঞেস করবে, তারপরে পেটিএম এর কেসটা হতে পেটিএম পেটিএম এর সময়ও বলেছি পেটিএম কি এটা বেসিক্যালি একটা রেগুলেশন প্রসেস, এরকম কিচ্ছু নয় কি পেটিএম বন্ধ, সবাই ভেবেছিল পেটিএম বন্ধ হয়ে যাবে, কিচ্ছু হবে না, এটা একটা রেগুলেশন প্রসেস। মার্কেট এগুলোকে এমন ভাবে দেখায় যেন সব শেষ হয়ে গেল, আর বিজয় শেখর শর্মার একটা কান্নার ছবি দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, যেন রুমালে করে চোখে জল মুছছে, अरे भाई ওরকम একটা ছবি কোথা থেকে দিয়ে দেয়া যায়, ठीक है, वैसा करके थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, रेगुलेशन इशू हुआ था, उसके उसको एक पेनल्टी मिला, इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका बिजनेस खराब हो जाएगा। धोनी को पूछना, एक्चुअली उससे पहले मैं सबको पेटीएम लेने के लिए बोला था और सबको प्रॉफिट भी हो गया था, 300 350 करके प्रॉफिट में था सब पर शेयर में, मैं लेने बोला था 400 450 में, और मैं टारगेट दिया था 900 का, 800 जाके फिर से गिरा था थोड़ा 700 750, तो मेरे को पूछ रहा था क्या करेगा, मैं बोला देख मेरे को तो लगता है 900 में जाएगा, लेकिन ये खबर पता ही नहीं था कि आरबीआई रेगुलेशंस आएगा और संगे संग उसका ट्रेडिंग भी फ्रीज हो जाएगा। हाँ तो जब ऐसा हुआ सब कोई पूरा एकदम चिंता में आ गया, इवन जो लोग मेरे पास स्टॉक मार्केट पढ़ता भी नहीं था, ऐसा भी कुछ स्टूडेंट था जो मेरे को पूछ के लिया था। फिर मेरे को टेंशन था क्योंकि इतना सारा लोगों को रिकमेंड किया, सब मेरे को सर क्या करे क्या करे क्या करे, मैंने अगर कुछ भी मिल रहा है क्या बेच दे, 300 350 जो भी है बेच दे, मैं बोली सर रख दो 5-6 महीना बढ़ जाएगा ये, बोले क्या बात करते हो सर और कुछ नहीं हो सकता, बोले सर होगा, यूपीआई फ्यूचर यूपीआई चला गया ना वापस 650 में आ गया ना, 5 महीना भी नहीं, हार्डली 5 मंथ्स लगा, 4-5 मंथ्स हो गया था, मैं बोला था चेंज हो जाएगा क्योंकि ये यूपीआई का डोमिनेटिंग फोर्स है। अच्छा जिंक का एक आइडिया आज आपको मैं दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जिंक का दिखाऊंगा, ये लेड से भी ज्यादा बेहतर है। স্যার জিঙ্ক জিঙ্কের আপনি চার ভাগে ভাগ করলেন স্যার, এক হচ্ছে মেডিকেল সেক্টর, আরেকটা হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর, আর একটা হচ্ছে আপনার স্যার ওই ফার্মিং ফার্মিং হ্যাঁ ওই ফার্মিং মানে ওটা দুটো মেনলি দুটো সেগমেন্টস, একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ খুব আছে যেহেতু করোশন এজেন্টের অ্যান্টি করোশন হিসেবে কাজ করে, ক্ষয় পাওয়ায় না জিনিসকে, আর এখানে আরেকটা ছিল পেট্রোলিয়াম পেন্ট ফাঙ্গিসাইড রাবার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয়, মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ প্লাস কেমিক্যালাইজড ইউজও ইউজ হয়, প্লাস এখানে অটোমোবাইল ব্যাটারি তো এর ইউজ দেখে, সব থেকে বেশি ইউজ হয় এই ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে, মানে অ্যানিমাল সাপ্লিমেন্টসে, আর সেকেন্ড বেসিক ভালো ইউজ হয় বেসিক্যালি বিল্ডিংস ভেহিকল সিলস वगैरहতে, মানে ওভারঅল এর একটা বেশ ভালো রকমের ইউজ আছে জিঙ্কের, ঠিক আছে, তো জিঙ্কের বাড়া কমাতে মার্কেটে ইম্প্যাক্ট পড়ে, হ্যাঁ ইয়েতেও আছে, এর হোল্ডিং আছে, ম্যাক্সিমাম মিউচুয়াল ফান্ডে এর হোল্ডিং আছে, ठीक है, আমি দেখেছি। और हिंदुस्तान जिंक तो एक হ্যাঁ बहुत बड़ा कंपनी है भी, হ্যাঁ हिंदुस्तान जिंक ये ना, হিন্দুস্তান হিন্দ জিঙ্ক আর ওই জিঙ্ক ইন্ডিয়া যেটা আছে, हिंदुस्तान जिंक की तो नहीं कंपनी नाम, তা আমাদের জিঙ্ক ইন্ডিয়া জানেন তো, ইন্ডিয়ান জিঙ্ক ये देखो, ठीक है, কমান্ডি শিক্ষা লিখে যারা দুই দিন লাগে আমার কমান্ডি, ঠিক আছে চিন্তা ধরে ওর আশেপাশে যে কোম্পানিগুলো আছে তুমি ওখানে मैंने तुमको कॉमेडी इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता रहता हूँ कि अगर आपको कॉमोडिटी का एक्सपोजर हो जाए ना तो रिलेटेड इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा, तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि जो भी मेरे पास कोई एडमिशन के लिए आता है कि भाई कॉमोडिटी पढ़ो, तो कॉमोडिटी पढ़ने से तुमको स्टॉक का आइडिया मिलेगा, इकोनॉमी का आइडिया मिलेगा। কেন তুমি বলছি अब कोई कोई क्या सोचता है ना अपना कोर्स में एडमिशन के लिए बोल रहे हैं, हाँ वो तो एक कारण हो ही सकता है, इसमें क्या झूठ है, मैं तो सीधा ही बोलता हूँ, लेकिन मेरा एक कोर्स में एडमिशन एक्स्ट्रा होगा इसका कारण आपको क्या मिलेगा वो भी तो आप देखो, वो नहीं देखता है, चलो कोई बात नहीं आप लोग देखो। এই যারা ফিউচার নিয়ে ঠিক আছে তারা এই সব ছোটখাটো ये देखो जिंक का अक्टूबर फ्यूचर का तुम ट्रेंड देखो और तुम हिंदुस्तान जिंक का भी शेयर देखो, दोनों का ट्रेंड देखो ऑलमोस्ट सेम है, मैं तुमको दिखाता हूँ, সেম কেন স্যার একদিন বাদে হচ্ছে তো মানে মানে একটু সময় লাগে কিন্তু হয়ে যায় मैंने ऑलमोस्ट तुमको सेम काइंड ऑफ देखो हिंदुस्तान जिंक का देखो, সেম तो वेरी कनेक्टेड सर, मार्केट बहुत बड़ा समुंदर है,
लेकिन अगर आप तुमको लिंकअप करना आ गया, लिंकअप करना आ गया, तुम इधर नहीं रहोगे, कहाँ जाओगे पता नहीं। ये भाई बड़ी है जो ठीक है, जाओ घर जाओ। सर एक ट्रेड लिए है सर, कल कल लिए थे मार्केट में किया। नहीं 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 ठीक है सर, आज इतना ही है, इधर नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करेंगे। थैंक यू सुमित, गीतिका, बाय फिर आज, गुड नाइट, आफ्टर फ्री गुड नाइट। आफ्टर में तो प्रीमियम टा हुआ है मतलब सब सही कि बोल की भाई आफ्टर में प्रीमियम ना